हाँ, तो एकदम वैसा वाला कि अरे Okay. मतलब So, sir, we are live now on Facebook. या हाय Hi. So, good evening. Namaste to all the viewers. I am Saurabh Koshal, Director, Smart Circuits Innovation Private Limited. So, we have very innovative and creative people today with us. As I always say, knowledge makes you great, or innovation and creativity makes you great. So, similarly, we have a people like Abhishek Banerjee, Amar Kaushik ji, and Mitul Dikshit sir. एंड इनके काम ने इनकी इनोवेशन, इनकी क्रिएटिविटी ने इनको आज ग्रेट बनाया कि हम लोग आज इनको जानते हैं इन फिल्म इंडस्ट्री. एंड दे आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब इन फिल्म इंडस्ट्री. एंड वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इनको, बिकॉज हम सब इनको जानते हैं बहुत अच्छे से. सो लेट मी गिव अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम. So, firstly, let me introduce Amar Kaushik sir. So, good evening, sir. Welcome on this show, sir. Good evening. Good evening. So, Amar Kaushik sir is the National Film Award-winning Indian director and best known for the movie Stree in 2018, which is a mixture of horror and comedy. And जहाँ पर अभिषेक बनर्जी सर ने भी काम किए हैं उनके साथ उस मूवी में. It's really one of the best movie that is a combination of horror और comedy के साथ है जहाँ पर. And कौशिक सर ने अपना जो करियर 2008 में स्टार्ट किया. He belongs to firstly from Arunachal Pradesh and after that shifted to Kanpur in UP. And he worked with the Rajkumar Guptas as an assistant director. He also worked as an associate director, No One Killed Jessica and Kanchakka, and where Abhishek sir also worked in a No One Killed Jessica also. And Kaushik sir ने कुछ छोटे-छोटे roles acting भी किए उनके अंदर. And after that, after going from assistant director to director, he directed the movie called Abha, right? And the script was written by Kaushik sir and based on a story by his mother. And Abha was screened at the Toronto International Film Festival and won the special jury prize for the best short film at 2012 Berlin International Film Festival. And Abha also, won an honorable jury mention at the Dada Saheb Phalke Film Festival. So this is a very, a brief intro about Amar Kaushik sir. And we have Abhishek Banerjee sir, which is, famously known as a Hathoda Tyagi these days because of Patal Log. So welcome, sir, on our show. Thank you. Thank you. Thank you. So Abhishek Banerjee is an Indian actor, casting director, and a screenwriter. He began his acting career with the Delhi Theatre. His first film appearance was in Rang De Basanti, and he worked in Knockout as a casting director in 2012. He worked as a casting director in a dirty picture, No One Killed Jessica. He also acted in No One Killed Jessica in 2012 in Bombay Talkies. He also worked as a casting director in Gabbar Is Back, or Okay Janu Toilet Ek Prem Katha, Secret Superstar. And he acted in Stree in 2018, जो बहुत ही पसंद भी किया लोगों ने आपका जो रोल आपने Stree मूवी में किया in 2018. And for this film, he was nominated for the G Cine Award for a Best Actor in Comic Role. And recently, he played the role of Vishal Tyagi in the web series Patal Log, और हथौड़ा त्यागी के नाम से आपको जानते हैं. सुबह से बहुत मैसेज भी आ रहे हैं सर मेरे पास कि त्यागी सर से, हथौड़ा त्यागी से ये पूछिए, and all this type of question and all. So welcome you both. And on the other hand, we have a Mitul Dikshit sir with us, who is the director of Chandigarh Literature and Film Festival, and is also the chairman of a Dikshant group of schools in Chandigarh. And I must say, is again one of the most innovative and a creative person I have ever met, and he's like a mentor or a guru to us. So welcome to all three of you on this show. Thank you very much. तो सर हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. तो सबसे पहले अमर कौशिक सर से मैं पूछना चाहूंगा सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, यू बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश. आपके जो फादर थे वो वर्क करते थे उसके अंदर इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. And after that you shifted from Arunachal Pradesh to Kanpur in UP. So जो आपकी जर्नी रही है from that particular place, from Abha और assistant director to director in 2018 Stree movie तक की, definitely हर एक इंसान की जर्नी में कुछ ना कुछ struggles रहते हैं, कुछ ना कुछ thresholds रहते हैं, turning points रहते हैं, breakthrough रहते हैं. So हमारे viewers वो जानना चाहते हैं, being a common person, सर हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार एक एक्टर की लाइफ कैसी होगी, एक डायरेक्टर की लाइफ कैसी होगी, राइट? और हम जब सक्सेस पर पहुंच जाते हैं तो सभी लोग हमारी सिर्फ सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल रहती है उसमें. बिकॉज आई हैव रेड आप कहीं ना कहीं आउटसाइडर हैं. आउटसाइडर मींस बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन जस्ट लाइक खान्स एंड कपूर्स, जिनका ऑलरेडी लिंक है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, तो उनके लिए कुछ इजी हो जाता है अपनी पहचान बनाना.
but as you have no background and you also have a family pressure, because हमारी सोसाइटी में हमने क्या देखा है कि अगर हमारे फादर या मदर कुछ गवर्नमेंट जॉब में हो तो एक ऑटोमेटिक प्रेशर हो जाता है हमारे पास कि नहीं यार तुम्हें तो बड़े होके इंजीनियर बनना है या गवर्नमेंट जॉब करनी है. तो क्या ये आपकी चाइल्डहुड ड्रीम थी कि यार मुझे एक दिन डायरेक्टर बनना है, डेफिनेटली एक एक्टर बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? सो वो स्टोरी हम जानना चाहते हैं आपकी, वो जर्नी जानना चाहते हैं, and how you associated with Abhishek Banerjee sir and all. So it's over to you, and viewer wants to know about your journey, your struggle, your turning points, your breakthroughs in your life. एक मिनट before that, Saurabh, Yeah. let me tell you something about Amar कि अमर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था. Okay. जिंदगी में कभी प्रेशर नहीं था, और ये एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कर सकता. That's really awesome, sir. कोई कुछ भी बोले, और अभिषेक हंस रहा है, but he knows. I mean, he's lived his life. मुझे लगता है कि एक इंसान कभी भी स्ट्रगल भी कर रहा होता है ना, तो इसका मैंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा, बिकॉज ये हमेशा खुश रहा. एंड आई मीन थ्रू आउट हिज जर्नी ही इज बीन द सेम. अभी भी देख लो, मतलब आफ्टर ऑल बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डायरेक्टर, क्योंकि इसका जो जितना बैंक बैलेंस और वो सब है वो मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको. So, अमर, Yeah. Yes, sir. So Amar sir, yeah. हाँ, देखिए स्ट्रगल की जो बात है उसको मैं कभी स्ट्रगल नहीं बोला मैंने, उसको मैंने अपनी एक लर्निंग बोली है. जिस तरीके से अरुणाचल से आया, कानपुर में था, फिर दिल्ली आया, फिर बॉम्बे आया, तो वो पूरा एक जो प्रोसेस था, मुझे पता नहीं था कि मुझे फिल्म में डायरेक्टर ही बनना है या क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं था. हमेशा से मेरे अंदर ये था, मुझे ये लगता था कि जब भी मैं फिल्म देखता था ना, तो मुझे काफी एक्साइटमेंट होता था कि ये दुनिया क्या है. मुझे ये कहानियां बोलने वाली जो दुनिया थी वो बहुत पसंद आती थी. तो जब मैं स्कूल में था अरुणाचल में, तो मुझे याद है हम लोग वहाँ पे वीसीआर होता था, हमारे यहाँ वीसीपी था, तो उसमें हम लोग कैसेट लगा के देखते थे, और इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं थी, दिन में 3-4 घंटे के लिए ऐसा आती थी, तो हम लोग वो देखते थे. एक पिक्चर 5-6 दिन में खत्म होती थी, क्योंकि लाइट जब आएगी तो दौड़ के आएंगे, पिक्चर देखेंगे, जितनी देखी फिर अब अगले दिन आएंगे, फिर वो होगा. तो एक प्रोसेस 4-5 दिन तक वो फिल्म मेरे दिमाग में होती थी, और कैसी भी फिल्म होती थी. और जाके मैं वो फिल्म की कहानी स्कूल में लोगों को, बच्चों को बताता था कि मतलब अपने दोस्तों को कि ये हुआ, एंड लाइट आई तो दौड़ के घर आए, वीसीपी पे लगा के देखी. तो मुझे लगता है मेरे अंदर जो सिनेमा का जो आया है वहीं से आया था, और उस वीसीपी से. और उसके बाद जब मैं कानपुर आया कुछ पढ़ाई करने, तब ये हुआ कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना था, मुझे कुछ और करना था, बट कहीं ना कहीं अंदर से मेरा ये हो रहा था कि मुझे कहानियां में ज्यादा मजा आ रहा है, कहानी बोलने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन किस तरीके से बोलूंगा, फिल्म में जाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ आइडिया नहीं था. एंड देन धीरे धीरे करते करते मैंने घर पे एक बार बोलना चाहा कि मैं बॉम्बे जाता हूँ करके. तो पूरा बॉम्बे, और वहां पे क्या होता था, आप थोड़े छोटे टाउन में थोड़े ठीक ठाक दिखने वाले हो तो आपको हीरो बोल देते लोग, अरे तू तो हीरो बनने जाएगा. तो उस तरीके का प्रेशर एक उस तरफ से आता था कि ये हीरो बनने जा रहा है, बॉम्बे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता था कि कोई आसपास की दुनिया में भी कोई एक्टर नहीं था. तो फिर किसी तरीके से मैंने बात करके कि मुझे जर्नलिज्म का कोर्स करना है बोल के, तो मैंने दिल्ली में जर्नलिज्म की झूठ का सहारा लिया कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, और जर्नलिज्म के बहाने मैं दिल्ली गया, पढ़ाई करी, और वहां से मैं इंटर्नशिप जितनों की थी वो बॉम्बे दिल्ली में लगी थी, लेकिन मैं बॉम्बे आ गया, किसी को जानता नहीं था. एक प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप करी, और वो इंटर्नशिप करते करते टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस था, उसमें जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मुझे ये था कि मुझे ये करना नहीं है, मुझे फिल्म्स में जाना है किसी तरीके से. बट जब भी मुझे जो काम मिला था मैंने उसको 100% करने की कोशिश की थी. कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा था इंडियन आइडल का, तो वो जब कर रहा था तो मुझे बहुत मजा आता था वो करने में, कि मैं अगर और मेरा घर जो था वो बहुत छोटा था, मतलब ये जो रूम है इतना ही बड़ा होगा, इसमें हम लोग 4 या 5 लोग रहते थे, और घर जाने का मन नहीं करता था. आप बड़े घर से आए हो, वहां पे सडनली आपको एक रूम में 6-7 लोग को रहना पड़ रहा है, और शिफ्ट में सोते भी थे हम लोग. मतलब ऐसा था कि तुम्हारी रात में, तो मैं दिन की ड्यूटी मैं दिन का काम करता हूँ और मैं दिन में जाऊंगा. तो उस तरीके से हम लोग बैलेंस करते थे. तो बहुत दिन तो ऑफिस भी सोता था, लेकिन वो सब जो जर्नी और वो सब जो स्ट्रगल बोले, लेकिन ना मुझे उसमें बहुत मजा आता था, कि मुझे लगता था कि यार जो मैं सोचा था, जो मैं दुनिया आने जा रहा था, ये उसका रास्ता है. इसमें मैं अपने आप को कोफ्त में डालूं या अपने आप को ये लगूं ये क्या दुनिया में आ गया, वो कुछ मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं.
उसी दौरान क्या हुआ, उस जब मिडीटेक में कुछ 6-8 महीने साल भर निकलने के बाद एक पहली फिल्म मुझे मिली, मुझे नहीं मिली, मतलब एज अ वो प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहा था वो फिल्म को लाइन प्रोड्यूस कर रहा था मिडीटेक, आमिर राजकुमार गुप्ता की। तो मैं तुरंत जाके मैंने बोला कि मुझे उस फिल्म में काम करना है। तो बोले तुम तो टीवी वाले हो, फिल्म में क्यों जाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं मुझे करना है। वो बोले कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा चलेगा, कुछ पैसे मिले ना मिले चलेगा मुझे। तो फिल्म में मिलने गया, वहां पे हो गया, स्टार्ट किया अपना जर्नी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड पहली बार सिनेमा की दुनिया में, मतलब आप सेट पे आ रहे हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं कि आपको छोटे 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 प्रॉप्स देखने हैं, एक्टर से बात करने को मिल रहा है। एंड देन, और क्योंकि आप स्मॉल टाउन से जब आते हो, उस जगह से आते हो, तो आपको ये सब चीजें आपके लिए बहुत बड़ी होती है, ये नई होती है। आपको यही मेरे दिमाग में ये था कि यही भी मिल गया, ये बहुत है मेरे लिए, बहुत बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। एंड उसमें मेरा ये था कि मुझे ईमानदारी रखनी है अपने अपने काम में, कि अगर इसमें मुझे ये अपने आप ये नहीं देखना है कि यार मेरा ये टाइम, मेरी फैमिली, मेरा वो मैं पूरा भूल चुका था कि अगर मुझे 15 घंटे की जॉब होती थी तो मैं 24 घंटे देता, 4 घंटे सोता। तो वैसा वाला दुनिया में खो गया था और मैं घुसता गया और करते करते 8 साल निकल गए। उसमें मैंने काफी फिल्म्स में असिस्ट किया, एसोसिएट बना। एंड देन बनने के बाद फिर सडनली हुआ कि अब क्या, अब आगे क्या। और मुझे एक दिन भी कभी भी ऑन सेट ये फील नहीं हुआ कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, ये मैं असिस्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपनी करियर बनाना है, मुझे ये करना है। एक एक पल मेरा स्ट्रगल जो होती है, वो सबकी होगी, वो नहीं होगी तो मुझे लगता है कि कुछ मतलब नहीं है, आपसे कुछ बात करने का ही नहीं है। और मुझे वो स्ट्रगल से ही मैंने सीखा है, वही चीज मैं अपनी फिल्मों में डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं उसको स्ट्रगल तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ, उसको मैं अपनी लर्निंग मानता हूँ। वो मेरा फिल्म स्कूल था। करते करते ये हुआ कि अब अपना कुछ करना है, तो एक शॉर्ट फिल्म मैंने सोचा बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, देखते हैं अपने आप को कि कितने पानी में है। तो वो शॉर्ट फिल्म जब बनाने गए तो ये था कि अब कहाँ से पैसे आएंगे, वो शॉर्ट फिल्म में कोई पैसे नहीं देता। तो मितुल जी से मैंने पैसे लिए, राजकुमार गुप्ता जी से मैंने पैसे लिए और इनको बोला कि अब मुझे प्रोड्यूस करनी है। इन्होंने पहले बोला कि तुमको बनानी, तुमको जैसे बनानी तुम बनाओ, मैं देता हूँ, जो होगा प्रोड्यूस करूंगा। एंड मैं गया, तुरंत उठ के अरुणाचल जाके शूट करके आया, सिर्फ अपने आप को जज करने के लिए था। एंड जब शूट करके आया, एडिट हुई, ठीक बन गई, मुझे लगा कि ठीक है, उसको आगे भेजी फेस्टिवल्स में, वहां पे सेलेक्ट हो गई बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वहां पे उसको अवार्ड मिल गया, इंडिया में नेशनल अवार्ड मिल गया। करते करते अच्छा खासा उसको कुछ काफी अवार्ड्स वगैरह मिल गए। एंड देन आपको लगा कि हाँ, दुनिया को लगा कि आप कुछ बना सकते हो फिल्म। और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं अपनी फिल्म बना सकता हूँ, पहली फिल्म। उस बीच मैंने असिस्ट किया था राजन डीके को गोगा गॉन में, जिसमें अभिषेक ने एक छोटा सा कैरेक्टर भी किया था। और उन्होंने मेरी फिल्म देखी, आभा, उन्होंने बोला अच्छी है, बहुत अच्छी है, आके मिलो, कुछ क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं किसी और फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला एक और फिल्म है, उस पे तुम सुनना चाहोगे? उन्होंने मुझे स्त्री सुनाई। जब उन्होंने स्त्री सुनाई तो पहले तो मुझे ये था कि यार अपनी पहली पिक्चर, अपनी कहानी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बट मैंने 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते का डिसीजन अपने सोच कर लिया कि हाँ, इसको अपनी कैसे बनाएंगे। एंड फाइनली वो फिल्म मैंने हाँ बोली, बनाई। अभिषेक था उसमें, और जिस तरीके से कास्ट मिली, जिस तरीके से प्रोड्यूसर्स थे, जिस तरीके का सपोर्ट था, स्त्री बन गई, फिर बाला बन गई, फिर अभी आपके साथ। और आपने जो पूछा था अभिषेक से आपकी कैसी मुलाकात हुई, मेरा और अभिषेक का एक्चुअली 2011 जेसिका, नो वन किल जेसिका, हाँ, नो वन किल जेसिका के लिए हम लोग शूट के लिए दिल्ली गए थे। तो दिल्ली में ये वहाँ पे हमारे कास्टिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट कास्टिंग करते थे दिल्ली के लड़के, जो छोटे सब लोग थे, जिशान, अयूब, और इन सबको ढूंढने का श्रेय इनको और गौतम को जाता है, और अनमोल को। तो वहां से मेरी इनकी दोस्ती हुई, वहां से हम दोनों कहीं ना कहीं एक अलग सा कनेक्शन था, कि ऐसा नहीं था कि बहुत गहरे दोस्त थे हम दोनों, बट ये था कि हाँ, हम लोग जब मिलते थे कनेक्ट होते थे, किसी बात पे कुछ होता था कि अच्छा हाँ ये अच्छा है। और ये जब क्यूज देता था ना, तो ऑडिशन करते वक्त आपको क्यू देना पड़ता है, और जब ये क्यू देता था तो मुझे लगता था अभिषेक तू दे रहा है ये? कहता है मैं नहीं, ऐसे नहीं, ये कौन दे रहा है क्यू? तो ऐसे हम लोग पूछते थे, वो बोलता है ये करके हंसता था कि मैं दे रहा हूँ। तो मैं, और तब से मुझे लगा ये
ये एक्टर है क्या? तो मैं उसको पूछा कि तू एक्टर था क्या? अरे वो तो था, अभी तो ये कर रहा हूँ ऐसा ऐसा। कभी इसने मतलब ऐसा जाहिर ही नहीं किया कि ये एक्टर है, मतलब वो जो होता है ना कि मैं एक्टर हूँ, ये वाला जो जाहिर करता है, इसने कभी जाहिर ही नहीं किया। वो तो ऑडिशन जैसा लेता था, उससे मैं समझा कि ये एक्टर है, मतलब जिस तरीके से वो क्यूज देता है। तो फिर करते करते हम लोग की एक बार शायद बात हुई थी कि यार अभिषेक, ये एक फिर हम लोग थोड़ा क्लोज हुए कि मुझे फिल्म्स क्यों नहीं हो रही, ये हो रहा है। मैंने कहा आएगा, टाइम आएगा, करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर मन में था कि कभी अगर कुछ बनाई मैंने, अगर मैंने कुछ किया लाइफ में, तो मैं अभिषेक से पूछूंगा एक बार कि करेगा क्या। और एक अपने अपने लोग होते हैं सेट पे, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि जिसके साथ आप उस तरीके से मैंने करेक्ट अभिषेक को सोचा। तो अभिषेक को मैंने बोला, अभिषेक एक फिल्म में कर रहा हूँ, और कुछ कह रहे कौन सी वाली, पहली वाली है दूसरी? नहीं नहीं, वो वाली नहीं कर रहा हूँ, ये नई फिल्म है स्त्री, इसमें ये कैरेक्टर है। तो उसने बोला ये वाला कैरेक्टर, बिट्टू का कैरेक्टर जो अपार ने किया, वो ये करना चाहता था। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो मत कर, उसका ऑडिशन दे दे तू, क्योंकि इसका फनी लाइंस बहुत थी, और मतलब एक था कि यहाँ पेपर में काफी। तो मैंने कहा कि ये वाला मत कर, तू ये कर, मुझे लगता है ये तू जाना ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब हम इसको, मैंने राज कपूर का एक वो भेजा, एक क्या क्या था वो अभिषेक, कुछ तो एक पुष्पा मुझसे करके। शादी, आप हाँ, क्या आप मेरे बच्चों की माँ बनेंगी? माँ That बनेगी was the पुष्पा proposal. करके एक उनका क्लिप था। मैंने कहा अभिषेक ये है मेरा जना। तो ये देखा, वो हा 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 करके एक लिखा, और उसके बाद इसने ऑडिशन दिया। एंड देन आज हम दोनों, आई थिंक जितनी भी फिल्म बनाऊंगा इसको पूछूंगा, अभी कितना बड़ा हो जाएगा पता नहीं, बट पूछूंगा कि भाई छोटा सा एक रोल कर ले। तो ये मेरी जर्नी है। मतलब ये टांग खींचने वाली बात है। सो अभिषेक सर, मेरा आपसे क्वेश्चन, मैंने आपके बारे में ये पढ़ा है कि आप डेफिनेटली आपने दिल्ली से हैं, आप चेन्नई भी रहे हैं। जब आप चेन्नई में थे तो आप रजनीकांत के स्टारडम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे उस टाइम पर, और आपकी जो जर्नी रही है मतलब कि एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, तो बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आप एक्टर हैं या कास्टिंग डायरेक्टर हैं, राइट? और हमने मैंने आपके बारे में ये भी पढ़ा है कि आपने जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो या एफटी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट हो, वहां से भी आपने लर्निंग नहीं करी, कुछ भी नहीं सीखा, बिकॉज आपको लगता था कि यार कौन 2-2.5 लाख रुपया खर्च करे वहां पर जाने पर, एंड उसके बाद वहां से सीखे, टाइम वहां पर लगाए, तो सेल्फ लर्निंग में आपने बिलीव किया। और ये भी पढ़ा है मैंने कहीं ना कहीं कि आपके फादर चाहते थे कि आप इंजीनियर बने या किसी प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आए उसके अंदर। सो वो आपकी आपकी एक जर्नी डेफिनेटली हम भी सुनना चाहेंगे कि कैसे एक दिल्ली का लड़का, दिल्ली बॉय फ्रॉम थिएटर से लेके आज जो हथौड़ा त्यागी तक का एक सफर है आपका, राइट, जो बहुत फेमस भी हो रहा है आजकल। सो वो जर्नी जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कोर्स को पीछे रखकर सेल्फ लर्निंग कर कर आप आज इस मुकाम पर हैं, और इतनी अच्छी मूवीज लाइक स्त्री, मिर्जापुर वेब सीरीज पे आपने काम किया, तो उसके बारे में डेफिनेटली आपसे सर जानना चाहेंगे। आई थिंक मैं इनफैक्ट इस वेबिनार के थ्रू मेरी पहली बार अमर भाई से ये बातचीत हुई, और मैंने ये सुना वो स्ट्रगल के बारे में क्या सोचते हैं। इस बारे में हमारी एक्चुअली कभी बात हुई नहीं अमर भाई, लेकिन कमाल की बात है कि अब मुझे समझ में आया कि हम लोगों के विचार क्यों मिलते हैं, हम लोग साथ में काम क्यों करते हैं, क्योंकि आई थिंक कोर जो है शायद वो एकदम सेम है। मैंने भी कभी इसको कभी स्ट्रगलिंग पीरियड माना नहीं, तभी शायद मैं कभी बोलता भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं अपने आप को बहुत अच्छा एक्टर मानता था। तो जब मुझे मुझे कोई अगर राज सर अगर मुझे आके, मुझे याद है जेसिका का वो मनु शर्मा के दोस्त का रोल ऑफर किया था, मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे नहीं करना है, मुझे दोस्त का रोल नहीं करना है, मैंने छोटा रोल कर लेता क्योंकि मैं अपने लिए करना चाहता था। तो ये यार वही वाली बात है कि आई थिंक आधा हिंदुस्तान या पूरा हिंदुस्तान या 80% ऑफ द हिंदुस्तान जो है वो ऐसे घर से आता है जहाँ पे मतलब इसको आप मिडिल क्लास कहें, लोअर क्लास कहें, या भी मजबूर क्लास कहें। तो आई थिंक सब लोग जब भी हम किसी एक जर्नी पे निकलते हैं जहाँ पे हमें कुछ अचीव करना है, तो मुझे लगता है कि वो जो जर्नी होती है वो सबकी सेम ही है। किसी को अगर बड़ा डॉक्टर बनना है तो उसको भी उतना ही स्ट्रगल करके जो है वो बड़ा डॉक्टर बनेगा, या वकील बनना है तो किसी वकील के साथ रहकर जो है वो एक टाइम के बाद जो है वकालत करना शुरू करेगा। वैसे ही मेरे साथ आई थिंक बॉम्बे आया एक्टर बनने के लिए, लेकिन ये समझ गया था कि एक्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमें समझ में आए कि होता क्या है, एक्टिंग होती क्या है, और फिल्म्स क्या होती हैं, और सिनेमा में किस तरह की एक्टिंग होती है, क्योंकि थिएटर में अलग होती है और फिल्म्स में अलग अलग एक्टिंग होती है। तो इसीलिए मैं पिताजी से तो खैर वही वाली बात है कि वो सब लड़ झगड़ के जो है हर आदमी मतलब
बॉम्बे आता है, पिताजी फौजी थे, तो उनको बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं ऐसी क्या बोलते हैं बॉम्बे में आके एक्टर बनने की सोच रहा हूँ। तो उनको कोई भरोसा भी नहीं था, ना मेरी ऐसी शक्ल थी कि मतलब कोई बोल दे कि हीरो बन जाएगा। अमर भाई को तो फिर भी बोलते थे, मुझे तो किसी ने ये भी नहीं बोला कि क्या बोलते हैं हीरो बन जाएगा। तो मैं तो बड़ी दुविधा में था, लेकिन पता नहीं एक चीज थी कि अंदर से पता था कि मैं एक्टर हूँ और डीएनए जो है मेरा वो एक्टर का है। तो मैंने इतना मुझे पता था कि और जितना भी दुनिया में मैंने सिनेमा देखा था, मैंने ये समझ गया था अगर आप एक्टर हैं तो आप चाहे कैसे भी दिखते हो, वो कुछ टाइम के बाद अब अच्छे दिखने लगते हैं। और ये बड़ी एक क्या बोलते हैं कमाल की बात है एक्टर्स के साथ। शुरू शुरू में हर एक्टर जब नया आता है तो लोग ना बहुत सारे ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि मतलब चेहरे से रिलेटेड हो। मुझे भी बहुत बार, मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में वेब सीरीज करता था, मेरे दांतों के बारे में लोग लिखते थे कि अरे भाई कुछ कर ले अपने दांतों का, क्योंकि मैं सिगरेट पीता था तो दांत काले होते थे। तो मैं हमेशा वो होता ना, शुरू शुरू में लगता था कि अरे यार ये चेहरा ही नहीं है लगता है एक्टिंग के लिए। लेकिन आज शायद कभी मैंने अभी तक थोड़ा था कि जैसे आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि मेरे बाल कैसे हैं, मेरी दाढ़ी कैसी है, मेरे नाक कैसी है, मेरी आंख कैसी है। सब लोग जो है उस कैरेक्टर को देख के बात कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जर्नी थी मेरे लिए इम्पोर्टेंट एज एन एक्टर, उसको अचीव करने की। और उसके लिए जितना मैं सीख सकता था, गौतम सर के साथ जब वो कास्टिंग डायरेक्टर थे, नो वन किल्ड जेसिका में अमर भाई एसोसिएट थे। एक तरह का एक फैमिली होती है, वो फैमिली काम कर रही होती है सिनेमा में। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच में था जो शायद फैमिली की तरह काम करते थे, या जो मतलब सिर्फ सिनेमा के लिए काम करते थे, वो उस कहानी के लिए काम करते थे। और वो ही मैं सीखा, वही धीरे धीरे मेरे अंदर एक तरह की सीख बनी, एक तरह का लेसन बना। इसलिए मैं जब भी काम करता हूँ, और चाहे वो मैं कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ उस काम से, कास्टिंग से, किसी हो सकता है डायरेक्टर से, या हो सकता है किसी एक्टर से, या किसी प्रोड्यूसर से, जब भी वो फ्रस्ट्रेशन आता है तो अपने आप को बस यही बोलता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उस कहानी के लिए काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक वो मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट बना रहा। और और ये बात भी सच है कि जैसे ये बोल रहे थे कि जैसे इन्होंने गो गोवा गॉन में मुझे फोन किया और मैं वो रोल करने गया, मैंने कभी ये सोच नहीं रखी, जैसे इन्होंने बोला कि कभी वो बात नहीं होती कि काश मैं कुणाल खेमू का रोल यश में इसका रोल करता। मुझे लगता कि उनको वो रोल मिल रहा है, वो मतलब मेरे लिए बहुत है। वो 5,000 रुपए मिले थे, वो मेरे लिए बहुत है। उस टाइम के हिसाब से, उस उतनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो मुझे काम मिल रहा था, वो मैं उस काम से हमेशा खुश रहा। तो आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी विद व्हाटएवर वर्क आई हैव गॉट। आई हैव नेवर बीन, मैं कभी ना मैंने क्रिब किया, ना किसी सामने वाले को क्या बोलते हैं गलत ठहराया। गलत मतलब वो गुस्सा या वो सब चीजें होती हैं, आई थिंक हर एक्टर के अंदर वो रहेगी। लेकिन उसके अलावा मतलब हमेशा खुशी से काम किया, चाहे वो बॉम्बे टॉकीज में 10 सेकंड का सीन हो, देवडी में एक्स्ट्रा का सीन हो, या नो वन किल्ड जेसिका में पिक पॉकेट का हो। मैंने जब भी अपने आप को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने आप को देख के बड़ा एंजॉय किया। तो दैट इज हाउ। तो और उसके बाद ये वही वाली बात है कि इतने सालों का नाता है फाइनली। जो होता है ना कि एक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि यार आपस में कोई डायरेक्टर नहीं है, यार हमारे सर्कल में कोई डायरेक्टर नहीं है। ये बड़ी बहुत बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि ना एक्टर्स को हमेशा डायरेक्टर की जरूरत होती है, वरना एक्टर का मतलब कोई कोई फायदा नहीं है। मतलब बड़े बड़े एक्टर्स अगर देखेंगे आज भी, तो उनका और एक डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा वो अच्छी कहानियां बनती गई। और लोग वो कैरेक्टर्स देखते गए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक रिलेशनशिप होता है। एक डायरेक्टर को पता होता है ये इसके अंदर से मुझे ये चीज निकालनी है, जो शायद आपको एज एन एक्टर नहीं पता होता है। ठीक उसी तरह मुझे लगता था कि मैं बिट्टू अच्छा कर सकता हूँ। मुझे लगता था कि मैं शायद आकर्षित हुआ था उस कैरेक्टर पे जिसके पास ज्यादा लाइन थी या ज्यादा जोक्स थे। पर इनके दिमाग में मैं शायद वो नोवन के जैसिका वाला जो एसोसिएट अभिषेक बैनर्जी जो जो इन्होंने देखा था, शायद वो इमेज थी इनके दिमाग में। और इनको मैं हमेशा से जना लगा, क्योंकि तो उन्होंने मुझे कभी बिट्टू की तरह देखा ही नहीं, और उनके उस सोच की वजह से मैं जना कर पाया। वरना अगर मुझे कोई बोलता तो शायद मैं कभी जना नहीं करता। मुझे अगर कोई कोई शायद कोई अगर आके बोलता कि आप जना करोगे, तो मैं शायद कभी जना का रोल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं जना हूँ। लेकिन वो उनको दिखा। और इसी को कहते हैं मतलब एसोसिएशन, क्रिएटिव एसोसिएशन, वेयर एक दूसरे को जो है आप मतलब एनालाइज करके जो है काम करते हो, परख के काम करते हो, आइडियोलॉजीज मिलते हैं, फिलोसफीज मिलते हैं, तभी वो अच्छा काम होता है। बिल्कुल। तो सर जैसे हमने सुना है कि जब आप चेन्नई में थे, रजनीकांत जी का जो किस्सा है बहुत उनके स्टारडम से आप प्रभावित हुए, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली ना पढ़ाकू बच्चा था। मैं साउथ इंडिया में जब ओके। था, मैं पढ़ाकू बच्चा था। मैं बहुत ज्यादा स्टडीज को इम्पोर्टेंस देता था। और
खेल कूद में बड़ा इंटरेस्टेड था। मुझे बेसिकली क्रिकेटर बनना था, तो मैं रीजनल साउथ में क्रिकेट खेलने लग गया था। मैं स्कूल टीम में खेलता था और रीजनल जोनल मैचेस खेलना शुरू हो गया था। इनफैक्ट अगर मेरे पापा की पोस्टिंग ना हुई होती तो शायद मैं तमिलनाडु से रणजी खेल रहा होता। तो मैं क्रिकेट में काफी आगे तक मतलब खेल रहा था, जा रहा था, खेल कूद में ही हमेशा ध्यान था। लेकिन मुझे याद है एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने, वो छोटा सा टाउनशिप है, एक एटॉमिक पावर स्टेशन है कलपाकम, तो वहाँ पे टाउनशिप है सीआईएसएफ का, और जितने भी साइंटिस्ट और वो कर्मचारी हैं वो सारे वहाँ रहते हैं। तो मैं बाहर गया अपनी मतलब साइकिल में, और साइकिल में जाके होता है ना कि उस गली में मेरे दोस्त खेल रहे होते हैं, तो वहां जाके ज्वाइन कर लिया। देखा एक गली में गया, वहां दोस्त नहीं है, फिर दूसरी गली में गया, देखा वहां दोस्त नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ कि पूरा टाउनशिप जो है वो खाली है। तो आप समझ लीजिए जैसे लॉकडाउन में हम बैठे हैं और बाहर कोई नहीं है ना, वैसा ही माहौल था, बल्कि उससे भी ज्यादा शांत माहौल था, क्योंकि आवाजें भी नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है, लोग बाहर क्यों नहीं है। फिर मैं वापस घर में आया तो मेरी मम्मी को मैंने बोला, तो मम्मी ने बोला अरे वो रजनीकांत की फिल्म आ रही है ना, ये साउथ इंडियंस को बड़ी पसंद आती है उसकी फिल्म। तो मैंने बोला ये कौन महाशय है यार, मतलब मैंने कभी जिंदगी में ना सोचा ना समझा। फिर मैंने केबल टीवी में देखा कि एकदम शाम के 5 बजे जो है उनकी एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम था पड़ेयप्पा। सुपर हिट फिल्म है रजनीकांत सर की। वो फिल्म मैंने लगाई, वो देखी, और मैं मतलब जिसे कहते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैं फैसिनेट हो गया। मैं फैसिनेट हो गया कि ये कैसे हो सकता है, एक आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, वो कैसे सिगरेट, चश्मा, डायलॉग्स, इतना ऑरा, इतना पावर वो उनके स्क्रीन में दिखता है। व्हेन यू सी हिम एक्ट, ही हैज सच अ ग्रेट ऑरा। वो देख के मतलब मैं, मतलब जनरली बता रहा हूँ, मैं फिल्मों का फैन हो गया। आई यूज्ड टू लव वॉचिंग। मैंने इनफैक्ट हिंदी फिल्मों से पहले, सबसे पहले मैंने बंगाली फिल्में देखी हैं, बंगाली फिल्म एकदम बचपन में। मेरे पिताजी मुझे सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, इन ये सारी फिल्में दिखाते थे एज ए चाइल्ड फिल्म। मतलब मेरे लिए ओपू शमशार बच्चों की फिल्म है, या गोपीगायन बाघाबाइन मेरे लिए बच्चों की फिल्म है, वो चिल्ड्रन फिल्म है। तो वो देख के मतलब आगे बढ़ा। फिर वहां पे पापा ने फिर तमिल वाली, ये तमिल फिल्म मैं खुद देखने लगा। और देखते 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 सडनली मैं ग्रेजुएट हुआ हिंदी फिल्मों पे, जब मैंने हम देखी पहली बार लाइफ में, और मैंने अमिताभ बच्चन को देखा, उनको समझा। और वो हम देखने के बाद जो मेरे अंदर जो वो जोश चला कि मैं, मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। वो बच्चा एक होता है ना कि बच्चे के लिए एक्टर नहीं है, बच्चे के लिए मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। तब से मैंने ठान लिया। और देखिए कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली मैं उनके कॉलेज भी गया, जहां से उन्होंने थिएटर किया, मैंने वहीं से थिएटर किया। तो बड़ा अलग कोइंसिडेंस है, बट हुआ, ऐसा ही हुआ। That's really good. मिटुल सर, आप आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मुलाकात कैसे हुई अमर कौशिक सर और अभिषेक बैनर्जी से? जैसे अमर सर ने बताया कि यू आर द वन ऑफ द प्रोड्यूसर इन आभा मूवी। सो बीइंग अ प्रोड्यूसर, डेफिनेटली कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं किसी मूवी के अंदर, तो आपका एक ट्रस्ट फैक्टर भी वहां आता है कि यार मैं इस पर्सन में पैसा लगा रहा हूँ इसकी मूवी के अंदर, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप भी होना एक बहुत जरूरी है। तो वो आपकी भी एक स्टोरी जानना चाहेंगे, इनके साथ कनेक्टिविटी आपकी कैसी हुई अमर कौशिक सर और अभिषेक बैनर्जी के साथ, और आपने कैसे प्रोड्यूस की इनकी जो आभा शॉर्ट फिल्म थी सर? देखो अमर अमर के साथ आमिर के बाद आमिर आई मीन राजकुमार गुप्ता जिनके साथ इन्होंने आमिर स्टार्ट करी, इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। सो अमर वाज एन असिस्टेंट टू राजकुमार एट दैट टाइम। तो जनरली होता था कि ये हमेशा मोस्टली राज के साथ होते थे। दैट इज हाउ आई मेट। बट उसके बाद कि टेंशनली राज दोस्त था, बट उतना मजा नहीं आता बिकॉज ही वाज वेरी सीरियस काइंड। So when you have somebody, who's hanging around, with, the three of us hanging around, तो हम लोग का we jailed up quite. ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ पे हम लोग घूमने गए हैं, धर्मशाला हम लोग घूम रहे हैं, और सडनली राजकुमार गुप्ता बोल रहे हैं कि ये जूते देखो मेरे, ये देखो, मतलब मैंने महंगे जूते खरीदे हैं, और वो उनको उनको हमको दिखा रहे हैं। एंड सडनली मैं अमर की तरफ देखता हूँ, तो हम दोनों एक जैसे जूते पहने हैं। और मैं हंस के बोलता हूँ कि अमर तूने ये जूते कितने पैसों के खरीदे? तो बोलता मैंने सर 8,000 रुपए के। वो जूते नए नए थे, हमें नाइकी के 14,000 रुपए के जूते खरीदे। और ये आदमी मतलब जस्टिफाई करता रहा बिकॉज वो फिल्म खत्म हुई थी, और राज को ये लग रहा था कि ये जूते कैसे खरीदे, कि मेरे से महंगे जूते कैसे खरीदे। तो एक हमारा कॉमन दोस्त है
अनमोल जो कि अभिषेक के साथ अभिषेक और उनका कास्टिंग एजेंसी है, बहुत बड़ा कास्टिंग एजेंसी है, तो वो भी काम कर रहा था, तो उसको फोन मिलाया गया कि ये अच्छा ये एक बात बता। राज ने इमीडिएटली फोन मिलाया और बोला कि अनमोल एक बात बता, ये अमर ने जूते कितने के खरीदे? और वो अनमोल मतलब अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी इन लोगों की सबकी कि अनमोल ने बोला कि यार कुछ ना कुछ तो पक्का है, गड़बड़ है सर। तो उसने बोला कि सर ये कोई मेरे ख्याल से 10,000 रुपए के जूते खरीदे थे। तो अमर बोल रहा था 8,000 रुपए के जूते और बोल रहा था कि मैंने 40% डिस्काउंट में खरीदे। तो हम लोग का ऐसा ऐसा हो रहा है कि अमर शुरू से साथ रहा है एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसका कोई स्ट्रगल नहीं रहा है। हमको इस आदमी शक्ल से कभी नहीं लगेगा कि ये कोई स्ट्रगल है या कोई भी इसके लिए दिक्कत की कोई बात है। बिकॉज व्हाट अभिषेक ऑल्सो सेड, वहाँ पे दोनों लोग जेल कहते हैं कि अगर आप इफ यू आर एबल टू डू एंड जेन्युइनली आपको ये सब ना ट्रबल नहीं करेगा कि क्या परेशानी है। मैंने कभी अमर को घर में बॉथर्ड अबाउट, वो बोल रहा था कि 16 घंटे या 20 घंटे वो है। अगर सपोज उसकी वाइफ अगर देखो या जानो वो बेचारी कितनी परेशान होती होगी अमर को कि 4-4 घंटे वो ना बोलेगा कि अगर हम करेंगे तो उसको लगेगा कि यार बिल्कुल टाइम नहीं होता। वेरी जेन्युइन है। तो जब लास्ट में हुआ कि भी नए जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं ओवर सो मेनी इयर्स सो मेनी डायरेक्टर्स, राज के साथ काम किया है, अमित के साथ काम किया है, राज डीके के साथ काम किया है एंड टेल यू little I know all the directors totally dependent on him and एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है एक डायरेक्टर का मुझे लगता है कि 90% तो अच्छे डायरेक्टर ही बना देता है। तो when it came इसने स्क्रिप्ट लिखी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी कट रही है। हाँ आपके यहाँ टीवी चल रहा है शायद, वो बंद कर देंगे तो करेक्ट आ जाए। किसका टीवी चल रहा है? कहीं तो चल रहा है किसी के। डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी सी। हाँ अपना म्यूट कर दो फिर। Sure. तो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी शायद कोई भी अगर फिल्म बनाने जाता है तो जब आप अपना वर्क दिखाते हैं तो हम लोग बहुत पुश कर रहे थे। मतलब इतना आसान नहीं था कि ही वाज और वो थोड़ा स्ट्रगल रहता है कि जब कोई आदमी काम के लिए वो होता है तो इट्स अ ह्यूज थिंग दैट यू डोंट हैव वर्क। Fortunately for him, there was a lot of support from Nalini also, because एक फेज ऐसा शायद था कि जहाँ पे कि उसने she was working and she had supported him all the way. तो जहाँ पे एक नया फिल्म बनाना था तो ये हुआ कि हम लोग पुश कर रहे थे कि एटलीस्ट मैं पुश कर रहा था कि शॉर्ट फिल्म बनाना है या वो करना है। तो एक दिन हम ऐसे ही ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे एंड वो चल रहा था, तो मैंने कहा यार तू why aren't you making a film? तो नहीं अभी देखता हूँ, ये है वो है। तो I said यार तू ले पैसे whatever you require but you make a film without I didn't know what is the budget or anything। कि ये था कि यार बहुत ही जेन्युइन आदमी है, बहुत ही जिसको कहते हैं क्लोज, जिसको कहते हैं ना दिल से बहुत क्लोज है कि कहीं पे भी अगर सपोज हम लोग जा भी रहे होते थे कि पहली चीज ये होती थी कि अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सबसे पहले होता था यार अमर को बुला लो, या अमर को फोन करता था मैं चल तू आ जा जहां पर भी होगा। एंड ही आल्सो यूज्ड टू जॉइन अस एंड वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन। तो एक तो जेन्युइन दिल से वो होता है आपके लिए। बिकॉज मेरे लिए हमेशा रहा है कि टुडे इफ आई लुक एट अमर और अभिषेक, आई फील सक्सेसफुल। मुझे एक लगता है कि आई फील वेरी सक्सेसफुल सीइंग देयर सक्सेस। और अभिषेक के साथ क्या है कि अनमोल और इन्होंने जब कास्टिंग वो शुरू करी थी तो अनमोल का भी जर्नी, आई वांट टू शेयर दिस पार्ट ऑफ अनमोल्स जर्नी कि कैसे हुआ कि गौतम जिनकी ये बात कर रहे थे, तो गौतम देवदी के लिए, अनुराग के लिए कास्टिंग करने आ रहे थे, तो आ रहा था, तो वासन और वो आए, तो दिल्ली में कुछ प्रोडक्शन वालों ने कुछ मेसअप कर दिया। तो
अनमोल वाज द परफेक्ट जुगाड़ फॉर देम कि उसने पता नहीं गया वो स्टेशन पे कैसे उसने टिकट विकेट करवा दिया। और वो गौतम हमारा ऐसा दोस्त है कि वो मतलब बिल्कुल वो था कि यार ये बंदा ना he'll do, मतलब परफेक्ट बंदा है प्रोडक्शन के लिए, जिसने मेरा ट्रेन का टिकट करवा दिया बिकॉज इज वेरी प्लान। तो आई मीन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड वहां पे गए एंड अभिषेक एंड अनमोल स्टार्टेड पहले असिस्ट कर रहे थे। फिर ये हुआ कि एक फेज आता है कि गौतम फिल्म बनाना चाहते थे तो उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अभी भी। तो जो बीच में वो जो गैप उन्होंने लिया, तो दैट्स हाउ आई थिंक दे हैड टू take the whole I mean they started with the casting and both of them were very sincere about their work। और जब भी मिलते थे तो it always used to be कि हम लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, और that's how we got to know each other। Okay, so अमर कौशिक सर, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन अभिषेक तेरी आवाज नहीं आ रही है, अभिषेक म्यूट है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पे। मैं Yes. बेसिकली मैं ये आबा के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि होता है कि क्या बोलते हैं आप जो है मतलब जब आसपास काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि आप कभी भी अपने आसपास किसी बड़े कलाकार को नहीं देखते हैं। चाहे कितने से बड़ा कलाकार हो, आपके सामने जो है वो नॉर्मल आदमी होता है या दोस्त होता है, बड़ा भाई। तो वैसे ही कुछ किस्सा है मेरा आबा को लेकर। मुझे नहीं पता था इन लोगों ने कब बनाया, बिल्कुल सर, राज सर, अमर भाई, इन लोगों ने कब ये प्लान किया, कब ये बनाया, कैसे हुआ। लेकिन वही वाली एक कहानी होती थी, आपको लगता था कि चलो एक और शॉर्ट फिल्म बन रही है। इस देश में बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, रोज बनती हैं, और लोग सपोर्ट करते हैं, चलो एक और शॉर्ट फिल्म बन रही है। मुझे ऐसे होता ना कि आपके ख्याल में कि हाँ चलो अमर भाई बना है। फिर एक दिन इनका फोन आया मुझे और उन्होंने मुझे बोला कि आबा बन गई है, तो तुम जरा देखो आबा को। तो मैंने अपना फोन, लैपटॉप या हाँ लैपटॉप या आईपैड जो भी था, मतलब मैं सोचा कि यार अरे अभी मतलब यार शॉर्ट फिल्म देखो और उसके बाद जो है मतलब साला झूठ झूठ भी बोलो कि हाँ शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट फिल्म यूजुअली जो है वो हमेशा बुरी बनती है। मैंने जितना देखा है, लोग पता नहीं कुछ मतलब बिना मतलब वो बना देते हैं बस ऐसा। तो वो मैं, और मुझे बाहर की शॉर्ट फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है। बाहर की इनफैक्ट स्टूडेंट फिल्म जो है ना, शॉर्ट फिल्म, वो यूट्यूब पे भी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, एनिमेशन और वगैरह वगैरह, वो देखने में बड़ा मजा आता है। तो मैं ऐसा इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म देखने वाला ऑडियंस, इन्होंने इंडियन डायरेक्टर ही, लाइक डायरेक्टर भी नहीं, एसोसिएट डायरेक्टर, और ये भेजा इन्होंने मुझे। तो मैंने आवा देखी, कुछ कुल मिला के 20 मिनट की फिल्म है, 20 मिनट की फिल्म है बताएं, या 21 या 21 मिनट। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मतलब मुझे याद है कि वो देखने के बाद ना मैं सडनली एक थोड़े से आई डिडंट नो व्हाट टू से, बिकॉज मुझे पता था कि ये जीनियस है। और इनको बात बताए, मैंने आई थिंक आई विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट ऑडियंस जिन्होंने शायद वो इनको फिल्म देख के बोला था कि अमर भाई ये इंटरनेशनल है, ये नेशनल नहीं है, ये कुछ और बना दिया है आपने ह्यूमन इमोशन का एक ऐसा कनेक्शन उस फिल्म में दिखाया है, और ह्यूमंस के हालात और नेचर कितने ज्यादा क्या बोलते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, उस पर बात करती है वो फिल्म। मैं मतलब मैं उस दिन से इनका फैन हूँ। उस दिन से वो होता है कि ये फिल्म मेकर, मतलब होता नहीं कि क्या बोलते हैं, आप एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ काम करना चाहते हो जो इतनी बड़ी बात बोलना चाह रहा है। छोटी बातें तो सब बोलते हैं। तो आई थिंक ये मेरे लिए शॉकिंग मोमेंट था, एंड आई डिडंट नो कि यार ये कब बनी, कब हुआ, कैसे हुआ। एंड ही मेक्स इट लुक वेरी इजी एंड सिंपल, बट आई एम श्योर इट वाज नॉट। आई एम प्रीटी श्योर इट वाज नॉट। हाँ, एक्टर्स नहीं थे, तो वो जो मेरे एक्टर्स थे वो एक्टर्स नहीं थे। तो मैंने इन लोग को ही फोन किया था, यार मेरे वो एक्टर नहीं, तो कैसे ट्रेन किया जाता है। तो इन लोग ने छोटी छोटी टिप्स दी थी कि उसको दोस्त बनाओ, उसको ये करो, क्योंकि ये लोग कास्टिंग वाले थे। तो आपने कभी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि इनको मैं बुलाऊं ट्रेनिंग करवानी थी। तो फोन पे इनसे, तुमसे भी बात की थी, गौतम से बात की थी, और भी किसी से बात की थी, 3 लोगों से, कि हाउ टू ट्रेन देम। तो बोलते हैं उनको दोस्त बनाओ, और वो लैंग्वेज नहीं जानते थे वो जो एक्टर्स थे मेरे। तो हाँ, तो
बन गई वैसे ही बनी है। तो अमर सर, जैसे कि आपने आभा की बात करी, अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल लोगों को लेकर आपने वो आभा बनाई, तो एक जो सफर रहता है कि नॉन एक्टर से लेके एक्टर तक का, बिकॉज जब आपने स्त्री बनाई तो उसके अंदर कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ बनाई, तो नॉन एक्टर से एक्टर तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नॉन एक्टर्स के साथ काम करके ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब क्या सीखने को मिला वहां से जब हम नॉन एक्टर्स के साथ काम करते हैं? देखिए, नॉन नॉन एक्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत प्योर होते हैं। मतलब उनको ना आपने उनके बारे में कुछ पता नहीं है, उनको खुद को कुछ पता नहीं कि वो एक्टर है या वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं। आपको एज ए डायरेक्टर आपको पता है कि आपको कौन से भाव लेने हैं। तो वो जो था वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइमर के लिए एज ए डायरेक्टर, कि आप पहली शॉर्ट फिल्म बना रहे हो और वो उनके साथ कि जिनको एक्टिंग का ये भी नहीं आता है, जिन्होंने जिंदगी में कैमरा नहीं देखा, वो टफ था। क्योंकि उस समय लोग बोल रहे थे कि यही शॉर्ट फिल्म को बिहार में सेट कर दो, यूपी में सेट कर दो, अच्छे एक्टर्स मिल जाएंगे उनके साथ। बट कहीं ना कहीं ये जो कहानी थी वो वहीं पे सेट होती थी, वहीं पे ही जाती थी मेरी ये कहानी। तो मेरा ये था कि अगर मैं किसी और एक्टर को लेता हूँ उसमें, नॉन एक्टर को, बहुत इजी हो जाता, लेकिन वो प्योरिटी चली जाती फिल्म की। और मेरे ख्याल से अगर सपोज एक्टर्स होते तो शायद आभा नहीं बनती। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल 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 सही बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप उस स्पेस को यूज नहीं करते, अरुणाचल को यूज नहीं करते, तो भी मुझे लगता है आभा नहीं बनती। करेक्ट। उसकी खूबसूरती ये थी कि वो आई थिंक हिंदुस्तान की फिल्म थी, मतलब एक इंडियन फिल्म थी जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेंस मिली थी फिल्म को। जी जी। तो वही अप्रोच जो है ना, यही सिमिलर अप्रोच मेरा स्त्री बनाते वक्त भी था। कि जब स्त्री शुरू में सुनी थी मैंने, तो वो एक अलग, मतलब वो एक फिल्म थी। फिर उसको जो हिंदी भाषी बनाना था, उसको सेंट्रल इंडिया में सेट करना था, कैरेक्टर्स किस तरीके से करने थे, कौन एक्टर्स होने थे, तो वो सब जो था वो सेम प्रोसेस वही था। उसमें अभिषेक ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि जो आप बोल रहे हो नोन से अननोन, वैसा वाला नहीं था अभिषेक उस समय। मतलब मेरे लिए वो नया ही, हम लोग ने एक शॉर्ट फिल्म या ऐसा किया था, लेकिन ये था कि बहुत बड़ा कैरेक्टर है। इवन उसके अलावा भी जितने छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे भोपाल से, ये वो, तो वो सब उसमें थे। बट राज का क्या था, राज ने बर्लिन में आभा शॉर्ट फिल्म देखी थी मेरी। हम लोग उनकी न्यूटन थी और मेरी ये थी, और उन्होंने जिस तरीके से हम लोग ने बात करी थी शॉर्ट फिल्म को लेकर, तो मैं बहुत कनेक्ट हो गया था उनसे। मतलब जिस तरीके से बात हो रही थी, एंड वी वर लाइक कि अरे ये तो कमाल का, मतलब ये अगर ये इस तरीके के एक्टर्स हैं और तो मजा आएगा इनके साथ काम करने का। तो मैं अपनी पहली फिल्म जो मैं पिच कर रहा था उसमें मैं राज से ही बात कर रहा था कि राज आप करोगे ये, और उन्होंने हाँ भी बोला था, लेकिन हुई नहीं वो फिल्म। तो जब स्त्री जब आई मेरे पास, तो मेरे पास ऐसा 3 ऑप्शन थे कि ये करके। तो मेरा पहला था कि जैसे ही मुझे उनका वो कहानी खत्म हुई, मैंने तुरंत बोला राज, और वो भी स्माइल किए कि हाँ हम भी, अगर तुम ओके हो तो हम लोग भी ओके। एंड राज का ये था कि राज को किसी ने बताया था अमर कर रहा है, और उस समय ये हो रहा था फर्स्ट टाइमर के साथ ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही राज को पता चला अमर कर रहा है, अमर, और उसने बोला कि अमर कर रहा है तो 100% करूंगा, उस तरीके से। तो हम लोग की बॉन्डिंग सेट पे ऐसी थी कि हम लोग ने बातें नहीं करी थी, हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को क्या है क्या नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट हो चुके थे। और उसके बाद जो इर्द गिर्द की दुनिया थी, चाहे अपार हो, बिट्टू के लिए अभिषेक हो, श्रद्धा के साथ, तो सब पूरी दुनिया ऐसे फिट बैठ गई। क्या होता है कि जब आप घुसे हो फिल्म में ना बनाने में, तो आपको सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, ये एक ब्लॉक है, वो एक ब्लॉक है, उससे आपको एक इमारत बनानी होती है। तो वो इमारत दिख रही थी मुझे, लेकिन जो ब्लॉक्स हैं वो इन लोग ने ही पूरे किए। ये लोग नहीं होते, इनका सपोर्ट नहीं होता जिस तरीके से पहली फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि आप इतने बड़े सेट को आप पहली बार संभाल रहे हो, और ऐसा जॉनर को आप ट्रीट कर रहे हो जो आज तक आया नहीं है। आपको ये है कि आप एज अ फिल्म मेकर आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि इस तरीके की कॉमेडी फिल्म्स आती है, उसमें फिल्म मेकर नहीं दिखता है। कॉमेडी में एक्टर्स और अच्छी चल गई तो एक हाँ वो अच्छी फिल्म थी। इसमें एज ए डायरेक्टर अपने आप को स्टैब्लिश करना था। तो वो सब बहुत चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि आभा बनाने के बाद मुझे ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं मुझे ये था कि उस फिल्म में भी मैं कुछ बोल सकता था, कोशिश कर सकता था बोलने की, जो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट उसमें स्त्री में था, और ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज कुछ नया बोलने का तरीका, उस सब में इन सब ने बहुत हेल्प किया था। ऐसे तो मैं ये बोलूंगा कि एक्टर की जो आपने क्वेश्चन किया था कि एक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो एक प्योरिटी होती है शॉर्ट फिल्म की कि आपको उसमें बॉक्स ऑफिस हो या कुछ हो, उसमें आपको कोई उसकी परवाह नहीं है।
जब आप फिल्म बनाते हो तो ऑब्वियसली आप सबको ही नए नहीं लोगे, मतलब मैं अगर आपको पूछूं एकदम नए लोगों की पिक्चर, तो आप हो सकता है 3 साल बाद उसको डिस्कवर करो, अरे बहुत कमाल की पिक्चर, या लेकिन मुझे जो फिल्म बनानी थी थिएटर के लिए, थिएट्रिकल ऑडियंस के लिए, मुझे ऐसी फिल्म बनानी थी जो लोग देखें कि और ऐसा ऐसा भी नहीं बनाना चाहता था कि मैं सिर्फ देखने आए और बोले हाँ अच्छा था चलो निकलते, उस पर बात हो। ये मैं हमेशा से चाहता था कि कैसी भी फिल्म बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, हो सकता है चले नहीं चले, लेकिन बात होनी चाहिए उस फिल्म की। तो वो कोशिश करी थी, एंड उसमें हेल्प ये जो नॉन एक्टर्स थे या जो ट्रेन्ड एक्टर्स थे उनकी वजह से हुआ। जैसे बाला में फिर से मैंने एक नए लड़के को, मतलब नया लड़का वैसा नहीं था कि उसने कभी एक्टिंग की थी, थिएटर किया था, जो इनका भाई बना था धीरेन्द्र गौतम। हाँ, नरेंद्र गौतम कानपुर से, धीरेन्द्र गौतम। तो इन लोगों ने सिर्फ मुझे उसका एक रैप दिखाया था, अभिषेक उसमें कास्टिंग कर रहे थे, तो अभिषेक ने मुझे सिर्फ उसका एक रैप दिखाया, गाड़ी में ऐसा रैप कर रहा था मुंह से आवाज निकाल के, एंड और उसका ऑडिशन मुझे ऐसा था कि ऑडिशन में सिर्फ डायलॉग बोल रहा था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन जैसे रैप उसने किया ना, मुझे लगा यार अभिषेक कुछ तो बात है इसमें। और उसके बाद हम लोग को ये हो रहा था कि यार वो लग नहीं रहा है उसका भाई, आयुष्मान का भाई नहीं लगता है, मतलब उसकी शक्ल नहीं मिलती है, ये नहीं होता है वो, बहुत दिन तक इन टीम आपस में होता है ना कि आप क्वेश्चन करते हो और देखते हैं लड़के, और किसी को देखते हैं और किसी को देखते हैं, लेकिन जैसा हम दोनों का एकदम कनेक्ट हुआ था, ये अभिषेक को मैंने देखा, अभिषेक ने मुझे देखा, मैंने कहा अभिषेक कुछ तो है, लेकिन और ढूंढते हैं कि अगर ऐसा ही कुछ थोड़ा सिमिलर फेस में मिला, लेकिन फाइनली हम लोग उस पे गए जिसने कभी ट्रेन एक्टिंग नहीं करी थी, बट समहाउ वो कनेक्ट हो जाता है, तो वो इनोसेंस, वो ऑनेस्टी उन तरफ से आती है। Abhishek, my question is that Abhi, you've been working with a number of directors, but there's something which I've heard about Amar, that उसके sets में जो energy रहती है वो अलग तरीके से वो create करता है energy, and what do you think about the energy which comes on his sets? I think it's Amar Bhai's personality, as जैसे आपने शुरू में ही बोला कि how he is always very happy, how he is always very simple, easy to go. That's how I think he's on sets. और सबसे मजेदार बात क्या है ना, देखिए अगर वो खुद एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, तो क्या होता है सामने वाले जो लोग होते हैं, जो क्रू होता है, सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। तो वही वाली बात है कि परिवार में काम करना और ऑफिस में काम करना दो अलग अलग सिचुएशन बन जाते हैं। और अमर भाई के सेट तो मुझे लगता है कि सब एक बड़ा एक फैमिली सा एक माहौल रहता है, सब लोग क्रिएटिवली जो है अपने इनपुट्स देते हैं, और सब लोग जो और मैंने कभी नहीं देखा इनको किसी और की बात ना सुनते। हमेशा अगर कुछ वो गलत सजेशन भी है तो सुनते हैं, सुनने के बाद सोचते हैं, फिर बोल देंगे कि नहीं नहीं ठीक है ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हमेशा सुनते जरूर है। तो एक कलेक्टिव एफर्ट रहता है इनका, तो क्या है वो कम्युनिकेशन बिटवीन क्रू और हिम ना, वो बना रहता है। इसलिए वो डायरेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट कैप्टन ऑफ द शिप बन जाता है, कि मतलब सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इधर उधर नहीं फैलते हैं। तो ये बहुत ही कम जगह होता है जहां पर पूरा यूनिट डायमेंशन में जाके काम कर रहा है। हाँ, वो है, इसके साथ है एक्चुअली, कि अगर बिल्कुल आप थोड़ी दूर पे अगर आप मोबाइल लेके भी बैठे हुए हैं, तो एग्जैक्टली अगर आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे भी हैं, तो ये आदमी कहीं से भी जाके बता सकता है कि क्या मैसेजिंग चल रहा है या किसने क्या मैसेज किया है। मतलब उसका जो जो एक इंस्टिंक्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ कि उसका ध्यान, मतलब ही वुड बी वॉचिंग एवरीबडी, एंड कहाँ से तेरे को तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से इसको मैसेज देख लिया या कहाँ से इसको पता चल गया। तो मैं वो चेहरा पढ़ता हूँ, चेहरा फेस। आप जब मैसेज कर रहे होते हो तो आपके चेहरे का भाव पढ़ता हूँ। ऑब्जर्वेशन, एंड इट्स लाइक बेसिक जो एक होता है ना, कि हम लोग बात कर रहे हैं तो एक वो होता है कि अच्छा ठीक है यार इग्नोर कर दो कि दूसरा क्या कर रहा है, वो उसकी आंखें हर जगह घूम रही होती है, एंड दैट्स ऑब्जर्वेशन। अभिषेक ने जो बोला ना कि मैं सबकी सुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ, लेकिन बहुत बार मैं लेता भी हूँ, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लेता हूँ, सुनता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक तरीके से फिल्म देख रहे हो, और जिस तरीके से एक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक्टर्स की नहीं, मैं क्रू मेंबर में भी मैंने एक स्पॉट ने भी आके मैंने उसको उससे एक फीडबैक लिया था और उसको अप्लाई किया था और वो वर्क किया, मतलब उस लेवल का। तो मुझे लगता है कि वो जो क्रू को आप इन्वॉल्व करते हो पिक्चर बनाने में ना, कि ये तेरी भी पिक्चर है, मेरी भी पिक्चर है, क्योंकि मैंने वैसे ही काम किया था, मैंने उसी तरीके से अपनी किसी भी फिल्म में जो असिस्ट करता था वैसे ही काम किया था, और मुझे लगता था कि उस तरीके से काम करने से आपकी फिल्म की एनर्जी ऊपर जाती है। तो मैंने वही कोशिश की, और उससे बहुत अच्छे फीडबैक, बहुत अच्छे सजेशन मिलते हैं। अभिषेक
का में या अभिषेक का अज्जू में जितना मेरा हाथ है, उतना उसमें उसका भी उतना ही हाथ है इन्वॉल्वमेंट करने का। इवन हर एक्टर्स का, जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने भी जो किया है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ बोलूंगा, यहाँ पे, क्योंकि वो एक, देखिए एक्टर्स क्या होते हैं, हर एक्टर अपनी एक दुनिया लेके आता है, अपना एक एक्सपीरियंस लेके आता है फिल्म में, तो और आपका एक्सपीरियंस इतना होता है, लेकिन जब ये एक्टर्स का एक्सपीरियंस, लोगों का एक्सपीरियंस करके इतना ज्यादा हो जाता है, देन आपकी पिक्चर ज्यादा वर्क करती है कि हाँ, आपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके फिल्म बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। सो अमर कौशिक सर, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि आप इस चीज के अंदर बिलीव नहीं करते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब ये मैंने कहीं से सुना है, तो ऐसा क्यों है, मतलब इसके पीछे का क्या स्टोरी है सर? देखिए फर्स्ट, हाँ, मेरा वही मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये हम लोगों के लिए, जो हम लोग स्मॉल टाउन बोलो या उसको नॉर्मल नॉट मेन सेंटर्स बोलो, उस वहां से जो नहीं आते हैं, उनमें एक ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है कि आप बात करोगे, आपको समझेंगे, आपको, आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप पहली मीटिंग में आप सिर्फ नकली जाते हो, आप पहली मीटिंग में अपना होके नहीं काम बात करते हो, कि आप अपने अंदर की जो चीजें वो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी मीटिंग 15-20 मिनट की होती है और सामने वाला आपको जज कर रहा होता है ना, आप उसमें अपने आप को पूरा एक्टर बन के जाते हो, परफॉर्म करते हो आप वहां पे। लेकिन और उसमें आदमी गलत बन सकता है, आप उसको जज नहीं कर पाते हो, इसीलिए मुझे लगता है जितनी भी मैंने पहली मीटिंग करी है उसमें मैंने सब नकलीपन दिखाया है अपना। मैं अब नहीं, शायद पहले मैं हमेशा नकली होता था फर्स्ट मीटिंग में, कि मैं उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, या अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा, मुझे मालूम है कि स्क्रिप्ट खराब है लेकिन मैं बोलूंगा हाँ बहुत अच्छी है सर, बट मुझे लगता है ऐसा ऐसा, मैं बहुत, मतलब आप एक्ट कर रहे होते, तो मेरे हिसाब से वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, तो वो करेक्ट नहीं होता है। अभिषेक क्या बोलना चाहोगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है फर्स्ट इंप्रेशन में, मैं भी, सही बात है, मैं भी हमेशा एक्टिंग करता रहता हूँ। मैं, मुझे लगता है कि मैं, इट्स इम्पॉसिबल कि पहली बार में मैं इंसान से अपने दिल की बातें करने लग जाऊं। मैं भी परखूंगा, मैं भी जांचूंगा, मैं भी उनको क्या बोलते हैं समझूंगा कि किस 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 मानसिकता से वो वाकिफ लगता है। तो वो धीरे 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 बनता है। और फर्स्ट इंप्रेशन नहीं, मुझे लगता है कि वो बहुत सालों का क्या बोलते हैं रिश्ता होता है, और बहुत सालों की बातचीत होती है, बहुत सालों का काम होता है, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन बनना चाहिए। अगर आप पहली बारी में इंप्रेशन डाल रहे हैं किसी के ऊपर, तो थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं, और उस जजमेंटल हो अपनी जाता वो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं, हाँ हाँ, और वो ईगो से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ा ईगो से आता है। वो कहने को लोग बोलेंगे कि नहीं ईगो से कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पहली मीटिंग में किसी से प्रभावित हो गए या किसी से आप वो हो गए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो ईगो है वो चेक में रखना पड़ेगा आपको। है। करेक्ट। जी। तो अभिषेक सर, जैसे अभी आपने पतालोक में जो कैरेक्टर किया है, जो डार्क कैरेक्टर इसको कहा जाता है, चाहे वो मिर्जापुर में देखो, पतालोक में देखो, तो जब आप सर इस तरह के कैरेक्टर करते हैं, चाहे उसको मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स बोलूं, तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी होता है उसके ऊपर, राइट? जो रियल लाइफ में लोग हैं, जो कॉमन इंसान है, उस कैरेक्टर को देखते उससे प्रभावित होते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आपके जब कैरेक्टर को देखकर कोई नेगेटिविटी फैलती है, नेगेटिव कोई बोलता है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? सर ये वाली बात है कि अब मैं तो यही चाहूंगा कि अगर मतलब ऐसी बात है तो सिंघम देख के बहुत सारे पुलिस वाले मतलब जो है सिंघम क्यों नहीं बनते, या हीरोज को देखकर जो जो समाज के लिए लड़ रहे हैं उनको देखकर जो है वो लोग क्यों प्रभावित नहीं होते। तो ये प्रभावित किससे होते हैं किससे नहीं होते हैं, वो आपके अपने व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, वो किसी कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको क्राइम देखने में मजा आता है वो अलग बात है, लेकिन आपको क्रिमिनल बनना है और किसी कैरेक्टर देख के बनना है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ व्यक्तित्व स्तर एक तौर से मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खराबी है। और ये तो वही वाली बात है कि सिनेमा जो है वो एक तरह से समाज का जो है आईना है, और वही दिखाया जाता है जो क्या बोलते हैं हमारे सोसाइटी में हो रहा है। और हमारी सोसाइटी में अगर अच्छी चीजें भी हो रही है तो गलत चीजें भी हो रही है, तो गलत चीजों को किसी ना किसी को तो दिखाना पड़ेगा। तो और मुझे लगता है कि कोशिश मेरी इसलिए रहती है कि मैं उसको इतना ज्यादा निर्दयी बनाऊं, इन इन कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा क्रूअल बनाऊं कि उस क्रूअल्टी से लोगों को घृणा आने लगे, कि लोग उस क्राइम से घृणा करें, या उस तरह के दुनिया से जो है घृणा करें। तो इसलिए मैं शायद और ज्यादा मेहनत करता हूँ ताकि वो और डरावना दिखे। तो सर यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वी ऑलरेडी गोट हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, सो कुछ व्यूअर्स के हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो अभिषेक सर, यहाँ पे स्नेह का एक क्वेश्चन है कि आपकी ज्यादा कंसंट्रेशन एक्टरशिप के ऊपर है या कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर है, या
दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करते हैं आप? मुझे एक्चुअली मेरे साथ बड़े एक मतलब भगवान का शुक्र बोलूं या क्या बोलूं मुझे पता नहीं, मुझे एक्टिंग में कंसंट्रेशन की जरूरत जो है ना वो जिंदगी में जरूरत मतलब उसकी मुझे कमी लगती है, क्योंकि मैं हमेशा एक्टिंग में फोकस्ड रहता हूँ। वो कंसंट्रेशन मेरा हमेशा रहता है, वो मेरा ऑटो मोड है। अगर आप कैमरा लगा के इस वक्त मुझे लाइन दे के डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट करेगा तो मैं अभी एक्टिंग करने लग जाऊंगा। तो वो उसके लिए मुझे कभी लाना नहीं पड़ता अपना फोकस, वो ऑलरेडी है, वो सेंटर पे है मेरे। और कास्टिंग जो है उसके लिए मुझे फोकस लाना पड़ता है, वो काम है और किसी और की जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे उस काम से सामने वाले की जो है फिल्म में अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर होगा, तो वो मेरे लिए एक बड़ा दायित्व बन जाता है। एक्टिंग जो है वो मेरा सेल्फ है, वो मेरी मेरी खुद की चीज है, तो उससे मुझे कभी ना डर लगा है, ना मुझे ये सोच में आया है कि नहीं नहीं सब कुछ हटा के मैं अभी एक्टिंग करूंगा। उसका मुझे कभी स्ट्रेस नहीं, कैमरा के सामने कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, कैमरा के पीछे बिल्कुल ज्यादा ज्यादा दिक्कत होती है। बट और ये बहुत जल्दी स्विच भी होता है, बहुत जल्दी स्विच होता है। ये जैसे हम लोग बाला की इसने कास्टिंग भी की थी और मैंने इसको पुश करके मैंने बोला कि भाई तेरे को ये वाला रोल करना है, मेरी मेरी पहली फिल्म में अभी तू कास्टिंग कर रहा है लेकिन कैसे करेगा तू देख। हम लोग ने सारे ऑडिशन किए लेकिन फाइनली मैंने बोला तुमको ही करना है, क्योंकि एक हम लोग की बनी हुई है। तो लेकिन सेट पे भी हम लोग जब बात करते थे, ऑफ सेट होते थे, तो कास्टिंग की कोई अरे अभिषेक वो नहीं मिला यार अभी तक, उसका क्या करना है, हाँ उसको मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके कुछ बताएगा। एंड जैसे ही वो बात खत्म हुई सेट पे आए अंदर एक्टिंग के एकदम टर्न। तो ये इसके अंदर ये बहुत अच्छा है कि स्विच बहुत जल्दी करता है। मतलब एक्टिंग सीन करके आएगा और बाहर देखेंगे तो बाहर टेंशन में कुछ तो चल रहा है, किसी और फिल्म की कास्टिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, अरे कैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने कहा अभिषेक अपनी पिक्चर में ध्यान दे यार, बाला मतलब पिक्चर बन रही है। तो ये कहता नहीं नहीं उसके लिए ठीक है, और जिस तरीके से आता है वापस एकदम अंजू बन के आ जाता है हाँ करके। तो ये स्विच बहुत अच्छा करता है और ये ऊपर वाला देता है। हाँ हाँ Abhishek, does casting help you in becoming a better actor? सर इट इज अ प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। सो इन जैसे ये बोल रहा है मैं नो वन किल जेसिका से पहले से क्यूज दे रहा हूँ, 11 साल से क्यूज दे रहा हूँ, कैमरा के पीछे खड़े होकर अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, कभी माँ बन रहा हूँ, कभी बाप बन रहा हूँ, कभी हीरो बन रहा हूँ, कभी विलन बन रहा हूँ, कभी दोस्त बन रहा हूँ। इतने सारे कैरेक्टर्स इतने सालों से रोज एक्टर्स के साथ क्यूज देना, उनके साथ परफॉर्म करना, तो एक तरह की प्रैक्टिस होती रही। और वो प्रैक्टिस करते 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 अपनी अपनी जो गलतियां हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं ठीक करता रहा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। लोगों को मतलब ये एक्चुअली मतलब मुझे बड़ा हमेशा लगता है कि ये ऐसा ऑडिशन रूम एक्चुअली एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा सीखने वाली जगह भी है। या तो ऑडिशन दो या तो ऑडिशन लो, या तो लो, करेक्ट। तो सर रजत शर्मा हमारे व्यूवर वो बोल रहे हैं अभिषेक सर को, सर यू रॉक द कैरेक्टर हथौड़ा त्यागी, रजत सिंह बोल रहे हैं। अमर सर आपके लिए क्वेश्चन है नीरजा गुप्ता की तरफ से। अमर सर, यू ट्राई टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज थ्रू योर मूवीज बाला विद एन एक्सीलेंट कॉमेडी कंटेंट। योर मूवी स्त्री वाज अ बैलेंस बिटवीन कॉमेडी एंड हॉरर। हाउ दिस आइडियाज कम्स टू योर माइंड? तो ये कैसे आइडियाज आते हैं आपके पास? सो बेसिकली आइडिया स्टोरी तो एक होती है, मतलब जब स्टोरी लिखते हो तो एक जनरल जैसे बाला की एक कहानी, एक गंजे आदमी की कहानी जिसके बाल गिर रहे हैं, और वो आप कहानी बोलना चाह रहे हो। स्त्री में ये था कि एक औरत है जो फेस्टिवल के समय आती है और लड़कों को उठा के ले जाती है। तो ये एक कहानी होती है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या लगता था कि हमें जो मैं आपको बताया जिस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ फिल्म को या इस मीडियम को, क्योंकि ये जो मीडियम है ये बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडियम है हम फिल्म मेकर्स के लिए, कि हम इतनी बड़ी बात, हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं लोगों को और हम सीख नहीं देना चाहते। हम मतलब बोलते हैं ना आप गलत चीज नहीं दिखाओ, ये नहीं दिखाओ, क्योंकि मैंने देखा है बचपन में मैं प्रभावित होता था फिल्म से। अगर कोई गलत सीन था तो मैं वो भी करता था, अच्छा होता तो वो भी करता था। मतलब मुझे बहुत वो होता, अट्रैक्ट होता था वो करने के लिए जो पर्दे पे जिसने किया है और जो मैसेज आए हैं। तो मेरा यही था कि कुछ सिनेमास ऐसा फिल्म ऐसी होती है जो कुछ नहीं बोलती, मुझे वो फिल्म नहीं बनानी थी। अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, या कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ मैसेज देती हैं, मुझे वो भी नहीं बनानी थी। मुझे कहीं ना कहीं ये बैलेंस रखना था अपनी फिल्म्स में कि मैं लोगों को इंटरटेन करने वाला हूँ, उनको सिनेमा दिखाने वाला हूँ, उनको बुला रहा हूँ, उनको 500 रुपए के 400 रुपए के टिकट खरीद के बोल रहा हूँ मेरी पिक्चर देखो, बट जब वो देखें तो उनके साथ साथ उनको कुछ और भी बात बोल सकूं। वो मेरे लिए हमेशा से बहुत मैटर करता है, क्योंकि
अगर मैं, वो मेरी पर्सनालिटी है, अगर आप पूछो तो मैं, अगर मुझे किसी को डांटना है जो, या किसी को कुछ बात सुनानी है, तो मैं उसको डांटूंगा नहीं, मैं उसको सिर्फ उसका आईना दिखाऊंगा। ये मेरा तरीका है कि जनरल अपनी टीम में हो या कुछ हो, मैं उसको सिर्फ आईना दिखाऊंगा कि ठीक है बेटा, तुमने ऐसा किया है, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है अभी तो तुम्हारी फिल्म नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन करते रहो ऐसे, कुछ भी घुमा के मैं बोलता हूँ। तो मुझे लगता है उससे उसको ज्यादा वो फील होता था, कि उसको पता चलता था कि अरे मैंने गलती करी है। अगर मैं उसको खड़ा करके ऐसा सुनाऊं, उसको 2 चांटे लगाऊं, कभी तो नहीं पता चलेगा, छोड़ के निकल जाएगा। तो मैंने वही चीज अपनी फिल्मों में आजमाने की कोशिश करी है, और आई थिंक अभी तक वर्क करी है। हो सकता है हर फिल्म ऐसी ना हो, कुछ कुछ फिल्म ऐसी होती है थ्रिलर जिसमें आप कुछ बड़ी बात नहीं बोल सकते हो, लेकिन कोशिश यही करूंगा जब भी कोई फिल्म बना उसमें सटल तरीके से कुछ बोल सकूं पूरी पिक्चर के अलावा। अमर जी, पहली दोनों फिल्में जो हैं 100 करोड़ पार किए हैं, 125, 170। जी, जी। I mean, honestly speaking, how much is the pressure on you? वो देखिए पहला इससे जवाब नहीं, वो प्रेशर था जब मैंने आबा बनाई थी, तब मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था जब पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी। लेकिन जब मैं स्त्री बना रहा था, तो मेरे ही आसपास के लोग बोल रहे थे यार स्त्री क्यों बना रहे तू इतना, मतलब तू सिनेमा चेंज करने वाला वैसी वाली फिल्म बना ना, मतलब जो हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पे तुम्हारे अंदर वो है, तुम्हारे अंदर ये है वो है करके। और मेरे आपस के अंदर के लोग ही बोल रहे थे ये दिस इज नॉट अ करेक्ट फिल्म टू मेक। सो आई वाज लाइक कि ऐसा क्या होता है, मतलब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बनाते हैं करके, मैं वैसा वाला में था। और कट टू वो फिल्म निकली तो 100 हो गई, और मैं घबरा रहा था 50 होने के बाद। आई वाज लाइक कि अभी रुक जाओ यार, अभी इससे ज्यादा मत हो, क्योंकि अगली पिक्चर में प्रेशर हो जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बोला था यार बहुत है, ये इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर आएगा। बट वो हो गई 130 के करीब, 140 और मैंने मेरे लिए सिर्फ इतना था कि मेरा इतना पैसा 35 करोड़ आ जाए, मेरा प्रोड्यूसर को सारे पैसे अगली फिल्म बनाने को मिल जाए। हाँ, कि अगली फिल्म बनाने को मिल जाए, मेरा प्रोड्यूसर खुश हो जाए, मैं सिर्फ उतना ही चाहता था। वो हो गया। फिर उसके बाद बाला आई तो सबने बोला अब तो 100 है, अब तो मतलब अब तो तुमको प्रूव करना है 100 ये वो। और पता नहीं मुझे ये था कि देखा जाएगा यार, नहीं होगा नहीं होगा, दूसरी फिल्म जरूरी नहीं सबकी हिट हो या वो हो, तो मैं जो होगा देखा जाएगा। इसको भी पहली फिल्म समझ के बनाते हैं कि ये मेरी पहली फिल्म, वो हो गई हो सकता है वो तुक्के से बनी हो सकता है वो बाइक फ्लूक हो गया हो, तो इस फिल्म को मेरी पहली फिल्म है बोल के ये बाला बनाते हैं। बाला ने भी वही कर दिया। अब फिर से लोग बोलते हैं अब तो 3 फिल्में हैं भैया, अब थर्ड फिल्म आपको 100 देनी है। तो मैं बोलता हूँ अभी अब कोरोना के बाद देखेंगे, अभी कोरोना के बाद फिर से नई जिंदगी चालू है। क्या जिंदगी क्या नहीं चाहते हो यार। आई मीन तुम्हारी तीसरी फिल्म का जो वो है, आई मीन बट समवेयर कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट होता होगा ना कि यार दैट्स अ विक्ट्री, बिकॉज यू आई अंडरस्टैंड पहली फिल्म है तो लगता है कि अगर नहीं चलती, या आई मीन दैट वुड नॉट बी द केस विथ यू बिकॉज तुम तो बॉदर ही नहीं करते हो। बट कहीं ना कहीं तो वो प्रेशर होगा कि इन टर्म्स ऑफ, आई मीन प्रेशर भी नहीं होगा बिकॉज पहले फिल्म के बाद दूसरा होता है कि फर्स्ट फिल्म वर्क्स, यू get in the industry, but does it bother you at all, what would be, I mean, the kind of film which you want to make? नहीं, it bothers in a different way sir, in a different way, like अभी मेरे ऊपर प्रेशर, एक जो बोलते हैं कि प्रेशर आ गया है, वैसा वाला प्रेशर नहीं है मुझे कि मुझे ऐसा ही बनाना है या यही करना है। मे बी सब्जेक्ट को लेके मैं शायद ये सोचूं कि आबा जैसी फिल्म अभी मैं नहीं बनाऊंगा, या मैं आबा जैसी फिल्म में अलग से बनाऊंगा, ये थिएटर के लिए नहीं बनाऊंगा, वो हो सकता है मेरे दिमाग में आता हो। बट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आएगा क्या नहीं आएगा वो नहीं आता मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों। मैं नहीं आएगा तो नहीं आएगा, चौथी बनाएंगे, वो करेक्ट हो जाएगी। चौथी भी नहीं बनेगी तो अगर पैसा मिल गया तो फिर से आबा बनाएंगे, फिर अपने आप को रिवाइव करेंगे। तो मेरा वो नहीं है कि वर्क करी नहीं करी, होता है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है हर फिल्म मेकर को। आपको अच्छा भी लगता है जब पहला दिन का बॉक्स ऑफिस आता है, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन डर भी लगता है कि ये बॉक्स ऑफिस में ही ना फंस के रह जाऊं मैं, या इसमें ही नहीं फंस के रह जाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर फिल्म का जॉनर चेंज करता रहूं, अपने आप को चैलेंज कुछ अलग तरीके से करता रहूं। कभी वर्क करेगा कभी वर्क नहीं करेगा। बट मैं फेलियर, क्योंकि मैं असिस्ट किया है मैंने इतने साल, तो मैंने फेलियर भी देखे हैं
और सक्सेस भी देखा है लोगों का, डायरेक्टर्स का, एक्टर्स का, तो वो मुझे पता है कि किस फेज में से जाता है। और मैं अपने आप को बस ये रखता हूँ कि रूटेड रहूं, जिस ईमानदारी से मैंने पहली फिल्म, जिस इनोसेंस से मैंने पहली फिल्म बनाई, दूसरी फिल्म बनाई, वही इनोसेंस बचा रहे, इसीलिए मैं इनोसेंट जैसा रहता हूँ। सर यहाँ पे अंकिता गौर का एक क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गोट योर ब्रेक टू असिस्ट अ डायरेक्टर? सो बेसिकली देखिए, गुड क्वेश्चन। हाँ, गुड क्वेश्चन। सो ये देखिए, सबके लिए ना अलग आंसर है इसका। इसका कोई एक आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा कि ये एक तरीका है, इससे आप असिस्ट कर सकते हो, या ये एक तरीका है। जैसे फिल्म बनाने के, फिल्म मेकर बनने के बहुत सारे तरीके, सबके अपने तरीके होते हैं। ये अमर का वे था, ये अभिषेक का वे था, ये मितुल जी का वे था, ये आपका, सबका एक वे होता है कुछ भी करने का। तो आपको मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैंने शुरू करा तो मुझे कोई पता नहीं था कि असिस्ट कैसे करते हैं, क्या करता होगा असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या करता, कुछ पता नहीं था। मैं आया चुपचाप उठा के बॉम्बे, देखा जाएगा। जो उस समय आप करो ना, आपको वो आप करेक्ट करो। एंड आपको एक बड़ा वो होना चाहिए विजन कि मुझे वहां वो करना है, लेकिन अच्छा करते हुए करना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे एक्टर्स एडीज बन जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स, लेकिन उनका काम असिस्ट करने में नहीं होता है। उनका काम ये होता है कि मैं अच्छा तो कुछ कर दूं, सर ये रोल मैं कर दूं क्या, ऐसा कर दूं क्या, वैसा वाले करते हैं। तो आपको समझ में आता है ये इसको बनना एक्टर, लेकिन ये काम ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको एक्टर बनना है, और ये काम वो उतना दिल से नहीं कर रहा है। तो मैं वही बोलता हूँ कि जो भी आप कर रहे हो ना, आप अच्छा करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। जैसे अभिषेक की बात लेते हैं। अभिषेक जब कास्टिंग करता था, असिस्टेंट कास्टिंग करता था, तो ये कभी नहीं सोचता था कि मुझे ये रोल मिल जाए, मैं ये कैरेक्टर कैसे प्ले करूंगा, ये इसके दिमाग में नहीं था। ये वो अपना जॉब करके समझता था। कहीं ना कहीं इसके अंदर ये था कि आपको एक्टर बनना है, या मुझे ये करना है, कहीं बनूंगा, कभी बनूंगा, बन गया तो बन गया, अच्छी बात है, नहीं बना तो नहीं बना, मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ। तो वो आप अपना अगर लेके चलोगे ना, तो आपको जो चाहिए असिस्ट करना है असिस्ट करोगे, फिल्म मेकर बनना है फिल्म मेकर बनोगे, जो और करना है। दूसरी बात ये ना अमर भाई, मुझे लगता है कि डेस्परेशन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्या होता है ना कि कभी भी मतलब डेस्परेट मत बन जाओ कि यार मतलब मैं ना, मुझे यार ये रोल करना ही करना है, कोई बात नहीं, ये रोल नहीं मिलेगा, कोई दूसरा रोल मिल जाएगा। करेक्ट। डायरेक्टर्स के साथ भी वही है कि एक पिक्चर नहीं चलेगी, दूसरी पिक्चर चल जाएगी। ये जो डेस्परेशन है, ये कहीं ना हम लोगों को मतलब गलत स्टेप्स उठाने को मजबूर मजबूर करते हैं, कर, या वो फियर्स आ जाते हैं, या करप्शन आ जाता है। वो होता है जब आप बॉदर ही नहीं करोगे, जब आपको पता है कि हाँ आज मतलब वही वाली बात है कि कभी लगा देख के किसी फिल्म को या किसी एक्टर को कि यार ये बेटर हो सकता है, तो ठीक है, जब हमें हमारे पास आएगा तो हम बेटर करेंगे। लेकिन कभी वही है, आई थिंक दैट्स द होल थिंग ना, द पेशेंस इज द की। डू करेक्ट। योर जॉब, अपना काम करते रहो, मत सोचो दुनिया क्या कर रही है, अपना काम करो। But Abhishek, जी सर। this is slightly वो कि being into a casting agency also, जी and there have been talks about कि how actors, अभी पताल लोक में there's been people insecure actors questioning the whole role of the casting agency, and Amar is also there. So I mean, as a director, the question goes to both of you. Ki, uh, how do you? I mean, there are there's an advantage of having a casting agency and being an actor also. I mean, how do you define both the roles, and how does it affect work? I mean, मेरे ख्याल से पताल लोग अगर देखो या तुम्हारा खुद का भी कैरेक्टर देखो, तो मे बी it might not have worked with some other actor, or you know what I'm trying to say. आई नो व्हाट यू सेइंग, इस आई नो पे व्हाट यू मैं पहले बोलता हूँ अभिषेक। इस अच्छा पे हाँ एक ठीक। जो मुझे क्योंकि मैं सुन रहा था बहुत दिन से, ये चल रहा था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स को मौका नहीं दे रहे हैं, या स्पेसिफिक एक कास्टिंग कंपनी, इस तरीके का जो भी चल रहा है, जो भी बातें उठी हैं, क्योंकि मैं देख रहा था। एंड क्योंकि मैं अभिषेक को जानता हूँ, क्योंकि मैं इस कास्टिंग टीम को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और बाकी लोगों के साथ भी कास्टिंग करी है, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि कोई भी डायरेक्टर को एक एक्टर, मतलब एक कास्टिंग डायरेक्टर जोर नहीं कर सकता कि सर आप इसको लो, अनलेस डायरेक्टर को लगेगा कि हाँ ये एक्टर मेरे लिए परफेक्ट है, मेरी पिक्चर के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट इज द वर्ड। ऐसा भी नहीं कि 19 या 20, उसको लगेगा परफेक्ट है, तभी वो उसको कास्ट करता है।
बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, हर कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर नहीं बन जाता। और जिस तरीके से मैंने अभिषेक को लिया, अभिषेक की जो पहली फिल्म थी स्त्री जो मेरे साथ थी, उसमें वो अभिषेक कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था। अभिषेक उसमें एज एन एक्टर आया था, दूसरे लोग कास्टिंग कर रहे थे मेरी पिक्चर की, तो अभिषेक वैसे आया था। लेकिन क्योंकि हम दो एक्टर और डायरेक्टर्स का, जैसे प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन ने हमेशा एक बार फिल्म करी तो साथ साथ करते गए, तो वैसा एक रिलेशन बन जाता। तो मेरी हर फिल्म में मैं अभिषेक को के पास जाऊंगा ही जाऊंगा लेके। इसका ये मतलब नहीं है कि अभिषेक इज पुशिंग मी और पुशिंग एनी अदर डायरेक्टर कि मुझे इस पिक्चर के लिए लो। और हर डायरेक्टर एक कैरेक्टर के लिए 5 ऑडिशन भी नहीं देखते, 5 ऑडिशन 50 में वो बोलता है तुम 200 लेके आओ हर कैरेक्टर के लिए। वो थका देता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोल के कि मुझे एक ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, एंड देन वो सिलेक्ट करता है कोई भी डायरेक्टर। और ये जो बातें आ रही हैं कि ऑडिशन का मौका नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, कि आप सूट नहीं करते हो इस कैरेक्टर के लिए, ऐसा वैसा, ये तो होता ही, ये तो होगा ही। अगर आप सूट नहीं करते हो तो नहीं करते हो, और अगर आप अच्छे हो तो आपको कहीं से भी निकाल के लाएगा वो कास्टिंग डायरेक्टर, आप देखोगे और आप पिक्चर में लोगे। अगर मुझे लगेगा कि ये गौतम ने, कानपुर का लड़का जिसने कभी एक्टिंग नहीं करी है और ये अच्छा करेगा, तो मैं इसको लूंगा। नहीं, और दूसरी मुझे मुझे लगता है मितुल सर, ये बड़ा वही वाली बात है कि इसमें भी हमें क्रिएटिव एसोसिएशंस की बात करनी चाहिए। जैसे आप और राज सर के साथ बहुत सालों तक संबंध बनाने के बाद आप लोगों ने जो है पैसे देने की बात सोची अमर कौशिक को कि आ जाके तू इतने लाख में ये शॉर्ट फिल्म बना के ला। ये जो जर्नी थी वो जर्नी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो आप लोगों का दोस्त। ये जर्नी इसलिए नहीं हुई कि क्या बोलते हैं अमर भाई आप लोगों के साथ खाना खाते हैं या आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये जर्नी इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी अमर भाई के क्रिएटिव दिमाग को उतना रिस्पेक्ट करते हैं जितना कि वो आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से एक रिलेशनशिप बना जिसकी वजह से एक फिल्म बनी। और फिर जो है वो आगे जैसे राजन डीके के बारे में उन्होंने बोला कि राजन डीके के साथ उन्होंने काम पहले किया हुआ था, एक एसोसिएशन था, और उसके बाद उनको एक ट्रस्ट आया कि हाँ अमर सर जो है उनकी फिल्म जो उन्होंने खुद लिखी हुई है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक दो दिन में नहीं होता है। और कमाल की बात है हम में से कोई रिश्तेदार भी नहीं है, सब लोग जो है अलग अलग जगह से आए हैं, तब भी जो है एक तरह से परिवार की तरह जो है काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात क्या थी, कास्टिंग डायरेक्टर वाली बात सही है। बहुत लोगों का सवाल ये जो है कि उनको लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स अपने लिए करते हैं या जो भी है, जिस तरह की भी बातें हो रही है, बातें इसलिए हो रही है क्योंकि शायद इतने साल बाद एक एक्टर जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसको अभी दुनिया एक्टर की तरह देखने लगी है। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो एक्टर इस बॉम्बे में आया था उसको, उसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे कि मैं बोलूं कि हाँ मेरे को एकदम फेयर मॉरल ग्राउंड्स पे जो है एज एन एक्टर ट्राई किया गया। या मुझे उस जमाने में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे मौका भी दिया एक ऑडिशन देने का। मुझे तो शायद मौके भी नहीं मिले थे। मैंने तो इतने सारे लोगों को मौके भी दिए ऑडिशन देने के लिए भी। और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जैसे जीशान हो गया, प्रियांशु कन्योली हो गया, अविनाश तिवारी हो गया, धीरेन्द्र गौतम हो गया, सिद्धांत चतुर्वेदी हो गया, ऐसे बहुत बड़े रेड में जो दादी बनी थी, ये सब नए नए एक्टर्स हैं, नए नए चेहरे हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है वो लेकर आए। अब हुआ ये कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर बिकॉज मैं प्रैक्टिस करता था, तो एज एन एक्टर मैं जो है क्या बोलते हैं एक तरह से मेरे अंदर और क्या बोलते हैं एक स्पॉन्टिनिटी आई, मेरा प्रोसेस बदला, तो मैं धीरे धीरे कास्टिंग करते करते और बेहतर एक्टर बनता गया। और जब मैं इतना बेहतर बना जहाँ पे मैं इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों और इतने बड़े बड़े वेब शोज के लायक बन गया, तब जाके मुझे काम मिला। काम मुझे तब नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर तो मैं बहुत सालों से पहले से था, लेकिन तब भी उस सिस्टम के पार्ट होने के बावजूद भी जो है लोगों ने मुझे कभी काम नहीं दिया। राज सर ने ही मुझे, राजकुमार गुप्ता जी ने मुझे इद्रिस के रोल के लिए जो है ऑडिशन करके मेरी, मतलब मेरे मुंह पे उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है। वो रिजेक्शन झेल के जो है मैं जिंदगी में आगे बढ़ा, जहां मुझे लगा कि हाँ सचमुच मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैंने सब एक्टिंग को मेहनत की। अब रही बात इस बात की कि हम लोग जो है एक कंपनी है जिसका ये दायित्व है कि अपॉइंट करना है हमें दूसरे एक्टर्स, तो सॉरी, इस बात को मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा, हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। A casting company doesn't have a moral responsibility on giving work to actors. Our responsibility, professional responsibility, ethical responsibility is to give the directors their characters. अगर डायरेक्टर्स जो हैं हमारे काम से खुश हैं
तो मैं किसी भी दूसरे या तीसरे या चौथे पांचवे बंदे की बात नहीं सुनूंगा जो आरोप लगाए या ना लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी एक्टर के लिए काम नहीं कर रहा। कास्टिंग डायरेक्टर जो है किसी एक्टर के लिए काम नहीं कर रहा। हमारा काम ये जरूर है कि हम अच्छे कलाकारों को हमेशा अपने ध्यान में रखें, उनको कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह से उनको काम दिला सकें, कोशिश करें कि क्या बोलते हैं वो लोग जो है आगे बढ़े, और ऐसा हुआ भी है, किया भी है। और आई थिंक मेरी फिल्मोग्राफी और जो एक्टर्स हमने की हैं वो उसका गवाह है। एटलीस्ट आई हैव सम प्रूफ। तो वो चीज है। और दूसरी बात ये कि ये असिस्टेंट्स पे जो अटैक हो रहा है, मुझे लगता है ये बड़ा दुखद है, क्योंकि कास्टिंग असिस्टेंट जो है ये वही लोग हैं जो जो वो लोग हैं, वो लोग भी उसी उन्हीं चंद पैसों के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं से आके जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई कारण है कि मैं अपने असिस्टेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कोई कारण है कि वो मेरे कंपनी में काम करते हैं। इसलिए नहीं काम करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टर है, इसलिए नहीं काम करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो क्रिएटिव है, इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी से मिलती है। जरूरी नहीं है कि मेरी आइडियोलॉजी दुनिया के हर 90% लोगों के साथ मिले, और ये मेरा पर्सनल फ्रीडम राइट है इंडिया में रहने का, कि मैं अपने लिए वो स्टाफ चुनूं जिनको मैं मानता हूं कि मेरे साथ उनके मतभेद कम होंगे, मेरे साथ उनके सोचने का तरीका मिलेगा। चाहे आप कितने भी क्रिएटिव हो ना हो, उससे मुझे मतलब नहीं। तो उन आइडियोलॉजीज के चलते हुए मैं मेरे 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 कंपनी में कुछ लोग हैं जो काम करते हैं और उनको बड़ा पसंद आता है हमारे साथ काम करना, हमें बड़ा पसंद आता है उनके साथ काम करना। कभी कभार कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो शायद हमें गाली देके निकल जाते हैं, या जो शायद बाहर जाके ये भी बोलते होंगे कि अरे यार यहाँ तो इन लोगों को मतलब काम करना नहीं आता, या जो भी है। वो हमेशा पक्ष विपक्ष तो रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं भी हवाई चप्पल में बॉम्बे आया था। मैंने भी जो है कास्टिंग कंपनी जो है वो हवाई चप्पल से लेकर जूता से लेकर आज क्या बोलते हैं लेदर जूतों तक पहुंचाया उसको। ठीक है, तो इतने साल जो है वो अपने लगाए इस इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई माई बाप नहीं है, उस इंडस्ट्री में जो है अपने लिए एक नाम बनाया। और सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए सर, देखिए बात क्या है ना, 8 साल तक मैं सिर्फ दूसरे लोगों को देखता रहा जो क्या बोलते हैं आगे जाकर नाम कमाया या पैसा कमाया या जो भी है उनको फेम मिलती है, जो भी मिलती है। क्या कभी कोई एक्टर वापस आके ये बात बोलता है कि कास्टिंग डायरेक्टर की वजह से जो है आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ? क्या अखबारों में आपने कभी पढ़ा है कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में, किसी एक्टर ने बोला हो कि अगर वो ना होते तो शायद मेरी जिंदगी में आज मैं इस मुकाम पे ना पहुंचा होता? क्या कभी कोई एक्टर टेक्निक होता है कि वो जो ऑडिशन मैंने दिया था, उस ऑडिशन में मुझे शायद उस कैरेक्टर की समझ आई? कोई एक्टर जो है दे डोंट से एनी काइंड वर्ड्स, दे डोंट से एनी काइंड वर्ड्स। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, या तो कास्टिंग डायरेक्टर जब काम देता है तो बहुत अच्छा इंसान है, काम नहीं देता तो बुरा इंसान है। ये तो चलता है। अगर आवाज उठानी तो आवाज एक्सप्लॉयटेशन पे उठाइए, आवाज उठानी है तो आवाज जो है परिवार संबंधित जो क्या बोलते हैं जिस तरह की कास्टिंग होती है उन पे उठाइए। आवाज उठाना है तो उस सिस्टम पे उठाइए, क्योंकि क्या है सिस्टम जो है वो बहुत पहले से बिगड़ा हुआ है, वो बहुत पहले से बिगड़ा हुआ है। और इस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझा हूँ वो है एसोसिएशन। अगर आपके एसोसिएशन नहीं है, क्रिएटिव एसोसिएशन नहीं है, तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। और वो एसोसिएशन इससे नहीं बनेगा कि मैं अच्छा कलाकार हूँ वो बुरा कलाकार है। वो एसोसिएशन आइडियोलॉजी से बनती है, वो एसोसिएशन आपके आप किस तरह के इंसान है, सामने वाला किस तरह का इंसान है उससे बनती है, आपके कॉमन इंटरेस्ट से बनती है। और वो हमेशा वेरी करेगा, हमेशा वेरी करेगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर 100 एक्टर्स हैं मैं 100 को पसंद करता हूँ, मैं 60 को पसंद करूंगा। हो सकता है उन 60 में से मैं 50 की एक्टिंग को पसंद करूंगा, और उन 50 में से हो सकता है 10 लोगों की आइडियोलॉजीज को पसंद करूंगा। तो मैं करूंगा, वो मेरा मेरा पर्सनल वो है। ना सरकार ने इस कंपनी को बनाया, ना सरकार ने कोई कोई क्या बोलते हैं संगठन बनाया, ना हम सरकारी मुलाजिम हैं। ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट काम चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट इन क्रिएटिव फील्ड। But I think, I mean, with a casting agency or when you work as a team, the whole idea is that whatever work you're doing, whether it's a film or a series, that it has to work for everybody. I mean, Yeah. effort is there. So I Yeah. mean, at the end, when everybody likes your work and things work, I mean that's the most important role. I mean that's the most important goal of everybody working together. Yeah, sir. And also, At the end of the day, Patal Lok works for you as an actor. It works for the director. I mean, people have. and I am proud. I am proud of casting each and every actor there. और वो जो बार बार बोला जा रहा है कि 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स, 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स, 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स, मैं बोलना चाहूंगा वो सारे के सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इसलिए वो शो में है। अगर वो अच्छे एक्टर्स नहीं होते तो वो शो में नहीं वही होते। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो अच्छे एक्टर्स होने चाहिए। वो और
और इतने सालों से मैं जोगी मलंग सर को जानता हूँ, कितना अच्छा काम करते हैं मैं जानता हूँ पवन। जोगी सर अपने आप में बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनको मैं कास्ट करूंगा? उनको मुझे कास्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, वो खुद अपने आप को बहुत जगह कास्ट कर सकते हैं अगर करना Yeah. होता तो। वैसे ही क्या बोलते हैं पवन हो गया, या बहुत सारे और जिनके जिनके बारे में बात की गई है। और और दूसरी बात ये है कास्टिंग कि एक लास्ट चीज है कि मतलब 100-200 कैरेक्टर्स होते हैं, 100-200 कैरेक्टर्स होते हैं एक शो में, एक फिल्म में। तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने पहचान वालों को या अपने जो आसपास के काम करने वालों को काम पे लगा दिया, तो बाकी 190 कहाँ से लाए? And at अगर the ये end बोल of रहे the हैं day, if it works, that's it. I mean, it's not या कि a director is going to risk, what you started with, that किसी को भी उठा के cast कर लेगा या वो. It यस is ultimately. ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं एज ए डायरेक्टर आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हम लोग कास्टिंग करते हैं, हम लोग जरूरी नहीं कि हर कैरेक्टर को ऑडिशन करें। कभी कभी हमको ये होता है कि नहीं, ये मुझे लगता है कि जो लिखा हुआ है ना, ये पढ़ते पढ़ते कि ये क्रू का मेंबर ये वाला ये करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसकी ऑडिशन में नहीं लेते, क्योंकि हमको लगता है कि ये कैरेक्टर इसको सूट करता है। एज अ फिल्म मेकर मुझे लगता है कि ये वाला कैरेक्टर ये करना चाहिए मेरा। हो सकता है मैं अपने राइटर को रोल दे दूं, हो सकता है मैं अपने डीओपी को एक रोल दे दूं, वो मेरा चॉइस है। आप ये बोलो नहीं, हमारे पास हमने एक्टिंग का वो लिया हुआ है कि हम एक्टिंग हमने पढ़ी है इसलिए हम ही को लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कोई कोई किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? फ्रीडम। सबको आजादी है, सबको आजादी है अपने हिसाब से अपना काम करने की, अपने हिसाब से अपने एक्टर चूज करने की, अपने हिसाब से अपनी कहानियां लिखने की। यहाँ पे कोई किसी का आगे नहीं नहीं बोल सकता कि चूंकि आप लिख रहे हैं आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, चूंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं वही आप लिख नहीं सकते हैं। ये गलत है। मतलब ये बेसिकली आप क्रिएटिव प्रक्रिया को बेसिकली एक तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करेक्ट करेक्ट creativity is never single dimension. It can never be single dimension. If it is one dimension, then you are just a labor. है। So, shall we take a quick questions? I mean, हाँ we हाँ have हाँ, सॉरी, हाँ wonderful अच्छा, questions. मुझे थोड़ा रैप करना पड़ेगा क्योंकि 8:30 बजे एक्चुअली मेरा एक दूसरा Sure, वो था, मतलब शुरू हो definitely. जाएगा 9 बजे तक। ठीक So let us हाँ। take. Okay, ठीक है. So, okay. So, Amar sir, आपके लिए question है. Amar sir, Bala was an amazing movie and was motivated by the movie. Many people face body shaming and lose their confidence whether they are perfect in their work. So, what will you say about this? बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब बाला की कहानी हम लोग लिख रहे थे, तो बाला की स्टोरी इस तरीके से ही थी कि एक आदमी है जिसके बाल झड़ रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस जा रहा है। और लेकिन मेरा ये था कि सिर्फ मैं इस पे पिक्चर नहीं बनाना चाहूंगा, मैं इस बालों का जरिया लेके बाकी चीजें भी मैं देना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग हर छोटी छोटी चीज से, कोई स्टैमर करता है, कोई पतला होता है, कोई हमारे घर में बोला जाता है अरे बहुत पतला है, 3 टी शर्ट पहन ले उसके बाद शर्ट पहन। तो वो जो बॉडी शेमिंग होती है, वो पूरी चीजें मैं दिखाना चाहता था इस फिल्म में। तब मेरी फिल्म बड़ी बनती है मेरे लिए। मैं अपनी फिल्म को गर्व से देख सकता हूँ कि हाँ, मैंने इसके लिए फिल्म बनाई है, ना कि सिर्फ एक आदमी के बाल झड़ रहे हैं और उसका क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको लग रहा है कि मैं गंजा हो रहा हूँ, मैं हीरो नहीं लगूंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही चैलेंज वही था कि किस तरीके से इन सब चीजों को लेके फिल्म बनाऊं। Okay. So, Abhishek sir, before you can leave, sir, आपके लिए question है. How जी। challenging ये जो question है, that is from Vandana Nehra. How challenging it was for Abhishek sir to do the role in the era of digital cinema, wherein the audience they have varies. That's what I think that is what as an actor I'm trying to evolve. मतलब मैं पूरे टाइम अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि अब जो है मुकाबला दुनिया से, अब जो है मतलब जब वेब प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं, वेब प्लेटफॉर्म पे हम कोई भी चीज बनाते हैं तो वो पूरी दुनिया दिख रही है, तो हम उसको जो है उतने ही शिद्दत से, उतने ही डिसिप्लिन और उतने ही सटीक तरीके से बनाएं जितने की दुनिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम इतनी सारी बातें करते हैं मनी हाइस्ट की, एक स्पेनिश शो बनाते हैं, स्पेन में जाके स्पेन के लोग जो है इतने खूबसूरत एक शो बनाते हैं, पूरी दुनिया देखती है, या नार्कोस देखती है दुनिया, तो वैसे ही जो है हमारे हिंदुस्तान के पाताल लोग भी लोग दुनिया देखेगी। और इतने सारे ऑडियंस है, तो अब जो है हमें अपने तरीके जो हैं, जो इतने सालों से चले आ रहे हैं, जो तरीका है एक्टिंग का, जो एक फोकस है एक्टिंग का, या जो आर्ट फॉर्म है एक तरह का एक्टिंग जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, उसको किस तरह से और एक नया ट्विस्ट दें,
इतने सालों से इतने सारे बड़े बड़े कलाकार जो हैं इतना अच्छा काम करते हुए आए हैं, अब इसको ग्लोबली जो है एक्सेप्टिंग कैसे बनाए। तो ये हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या बोलते हैं, वो जो कैरेक्टर्स हैं अब शायद कहीं ना कहीं वो स्टेट, कंट्री या एरिया से बढ़कर एक ह्यूमैनिटेरियन स्पेस में जा रहा है मेरे लिए। और वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो चाहे कोई भी देश में कहीं पे भी कोई बंदा बैठ के उस कैरेक्टर को देख रहा हो, वो उसको उसी तरह से रिलेट करे जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में लोग जो है उससे रिलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जर्नी अभी बड़ी चैलेंजिंग होगी कि किस तरह से उस कैरेक्टर को एक ग्लोबल इंसान बनाया जाए, ना ना बजाय इसके कि वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी है या एक यूपी वाला है या बिहारी है या तमिल है या कहीं का भी है। वो दुनिया में रहने वाला एक आदमी है, और पूरी दुनिया में जब रहने वाला आदमी जो उसको देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये कौन सी फिल्म की नाम भूल गया जो ऑस्कर में जो अभी जीती है, जो कोरियन फिल्म जो थी, पैरासाइट। पैरासाइट। पैरासाइट अगर आपने देखा हो, पैरासाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखे होंगे, आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हो, आप उन सारे इंसानों को पहचानते हैं, आप उन सबको पहचानते हैं। और वो जो परफॉर्मेंस है, वो जो डायरेक्शन है, वो काम जो है वो पूरी दुनिया की, वो यूनिवर्सल है। उसका कोई जात पात धर्म देश किसी से मतलब नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारे देश के लिए ये है कि हाउ डू वी डू दैट। I mean, I watched that film and 7 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। जी सर जी। Because when you start connecting with the film, you see it in your everyday life. बिल्कुल तो बिल्कुल। अभिषेक सर, जैसा कि आपको दूसरे शो में भी जाना, तो जाने से पहले बहुत सारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है कि कोई एक डायलॉग आप बोल सकते हैं हथौड़ा त्यागी का। वी हैव अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर हियर। सर जाने से पहले प्लीज, एंड आफ्टर दैट आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम अमर कौशिक सर आल्सो। हथौड़ा त्यागी का जो है कोई डायलॉग ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसके बड़े कम डायलॉग है, लेकिन मैं काम करूंगा, मैं स्त्री का जो डायलॉग है, जो विकी प्लीज जो है, वो डायलॉग जो है मैं हथौड़ा त्यागी की तरह बोलने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कैसा आता है। और उसके बाद सर स्त्री वाले कैरेक्टर में भी नहीं वही नहीं, स्त्री वाले कैरेक्टर को मैं और इस वाले कैरेक्टर को एक ही साथ परफॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके सर। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ विकी प्लीज। सो दिस इज हथौड़ा त्यागी मीटिंग जना। और जना का तो वही है, जैसे अमर भाई हमेशा बोलते हैं कि मतलब बस कुछ नहीं, मुंह फाड़ के हंसना होता है। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ विकी प्लीज। थैंक यू वेरी मच अभिषेक थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मितुल भाई, थैंक यू अमर भाई, सी यू। थैंक यू। You've been brilliant, and I'm sorry that I had to talk about this, because I know how brilliant an actor you are, and keep I mean doing all the best to all Thank you, all sir. in future, and I'm really proud of you. Thank you, sir. Thank you. I'm lucky to have all of you as my family in Bombay. Seriously. Thank you. Bye. Okay, sir. Bye. Bye. Okay, अमर सर, आपसे एक क्वेश्चन है। दैट इज आल्सो माय पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज मितुल सर को भी पता है कि आई लव स्पेस टेक्नोलॉजी एंड फिक्शन एंड ऑल। तो सर एंड मितुल सर बहुत सपोर्ट करते हैं हमें इन चीजों के अंदर। तो सर इंडिया के अंदर हमने ये देखा है कि बहुत कम साइंस फिक्शन मूवीज बनती हैं। अगर हॉलीवुड में बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज बनती है और वो हिंदुस्तानी से ही देखते हैं उनको। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, मार्शियन की बात करूं, तो हिंदुस्तानी बढ़ चढ़ कर देखते हैं और वो 200 करोड़ 300 करोड़ कमाती है। तो इंडिया में हम ऐसी मूवीज क्यों कम बनाते हैं, साइंस फिक्शन स्पेशली? सर वो म्यूट। हाँ, सो मैं बोल रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। हमको स्टार्ट करना है, और हो सकता है कि हमने अप्रोच ही नहीं किया। क्योंकि पहली चीज है कि जो साइंस फिक्शन फिल्म्स होती हैं वो थोड़ी हाई बजट फिल्म्स होंगी जब भी बनेंगी, क्योंकि आपको पूरी वीएफएक्स हेवी फिल्म होंगी, उसमें बहुत चीजें वैसी इन्वॉल्व होंगी जो कि टेक्निकल होंगी। अभी तक जो फिल्में जितनी हम बना रहे हैं वो बहुत इमोशनल कहानी जो हमारे आसपास होती है उसको लेके हम बनाते हैं। अभी जैसे ये हर चीज का एक फेज आता है कि पहले फॉरेन फिल्म्स हम देखते, बाहर की देखते थे, हर शूटिंग बाहर होती थी। अब वही चेंज होके ऐसा हो गया कि अब हम नॉर्थ इंडिया की देखते हैं, एकदम सेंट्रल इंडिया की फिल्में देखते हैं। और धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपको और कुछ नया देखना होगा, आप इन सब चीजों से बोर हो चुके होंगे, तब ये एक्सपेरिमेंट आएगा। और मुझे लगता है बहुत एक साइंस फिक्शन फिल्म अभी एक फेस्टिवल में, इंडियन शॉर्ट फिल्म, इंडियन बाहर फेस्टिवल का नाम भूल गया,
वहां पे एक अवार्ड भी जीती है, बहुत ही लो बजट में उन्होंने बनाई थी लेकिन काफी अच्छी बनी है वो फिल्म। तो मुझे लगता है कि एक स्टार्ट की जरूरत है और उसको एक सपोर्ट की जरूरत है प्रोड्यूसर्स से, और जिस दिन वो आ जाएगी तो बहुत जल्दी आ जाएगी, बनेगी। सर यहाँ पे एक एसपी सिंह जी का क्वेश्चन है, माय डॉटर वांट्स टू बी ए थिएटर आर्टिस्ट, शी इज स्टिल एट स्कूल, प्लीज गाइड व्हाट शुड शी गो फॉर आफ्टर पासिंग क्लास 12। ग्रेजुएशन के बाद उनको बोलिए कि बहुत सारी हर हर सिटीज में थिएटर ग्रुप्स होते हैं, तो वहां पे उनसे जाके बात करें, उनसे जाके मिलें। आपको हो सकता है शुरू में आपको एक्टिंग के रोल नहीं मिलेंगे, आपको बैक स्टेज करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, तो वो करते रहें। और जिस दिन आपको लगे, उनको लगेगा, जो भी थिएटर डायरेक्टर्स होंगे उनको लगेगा कि हाँ अब ये परफॉर्म कर सकती है, तो उसको उसमें बोलेंगे कि आके परफॉर्म करो। बट मैं वही बोलूंगा कि किसी चीज की जल्दीबाजी मत करिएगा। ऑब्जर्व बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए। ऑब्जर्व करना, 12th के बाद तुरंत आदमी एक्टर नहीं बन जाता, या तुरंत फिल्म आदमी डायरेक्टर नहीं बन जाता। ये जो हम लोग पूरे साल जिंदगी जो जीते हैं, जिस तरीके से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरीके से कैरेक्टर्स को सुनते हैं दुनिया में, आपके पड़ोसी, आपके चाचा, आपके मामा, ये सब कुछ मिलके आप पर्दे पे वही चीज दिखाते हो। तो उसके लिए पेशेंस रखें। 12th के बाद ये मत समझें कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं एक्टर बन जाऊंगी। आप ये ऑब्जर्व करें, फिल्में देखें जिसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स ने बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीते हैं, क्यों दिए हैं, एंड अपने स्टेट, अपनी सिटी में थिएटर ज्वाइन करें। तो सर यहाँ पे एक सृष्टि सिन्हा का क्वेश्चन है कि सर कैसे डिसाइड करते हैं कि एडिटिंग रोल का सीन, बिकॉज जो एक क्वालिटी होती है फिल्मिंग की वो डिपेंड करती है एडिटिंग के ऊपर भी। जी, तो बीइंग अ तो डायरेक्टर आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, बीइंग ए डायरेक्टर आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको हो सकता है कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि टेक्निकली आप कैसे उस फिल्म को एडिट करोगे, मतलब आपके पास बटन, बट आपके दिमाग में ये फिल्म चलती रहनी चाहिए कि आप किस किस तरीके से फिल्म देख रहे हो, कि अगर मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या करूंगा जो एक्साइट करे मैं ऑडियंस को। ऐसा नहीं कि अगर मुझे बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पे जाना है तो मैंने लिफ्ट का बटन दबाया और मैं ऊपर पहुंच गया दरवाजा खोल के। मेरे लिए मजेदार ये होगा कि आपने लिफ्ट आपकी नहीं चल रही, आपने बोला मुझे 6ठे फ्लोर जाना है, बट मैं पाइप से चढ़ के जाऊंगा, तो वो फिल्म होती है। तो इस तरीके से आपको अपनी फिल्म के एडिट भी आप अपने दिमाग में करते हो। एज अ फिल्म मेकर, मेरे जब मैं फिल्म शूट पे होता हूँ तो मैं एडिट के बारे में सोचता हूँ कि इस सीन के बाद मैं कहाँ एडिट करूंगा, कितना इसमें, इस सीन में मुझे इस एक्टर से कितना चाहिए कि ताकि इतना मैं इस यहाँ पे यूज करूँ। म्यूजिक चलता रहता है, तो ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है और ये पार्ट ऑफ एक क्राफ्ट है जो आप धीरे धीरे सीखते हो। तो सर यहाँ पे निधि पराशर का क्वेश्चन है, अमर कौशिक सर, हु वाज योर रोल मॉडल फॉर योर फर्स्ट फिल्म? रोल मॉडल तो अभी सच बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं तो इस ऐसा मेरे करियर में, या मैं जिस तरीके से मैं आगे, एक कोई रोल मॉडल नहीं है मेरे उसमें। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है उनसे सीखा है। बहुत कुछ फिल्म्स देखी हैं उनमें से सीखा है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एक आदमी बोलोगे तो वो मेरी लाइफ में वैसा नहीं है कि मैं ये आदमी मेरा रोल मॉडल है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल होने से आप सीमित हो जाते हो। बहुत सारे रोल मॉडल की अच्छी अच्छी चीजें जो आप कर सकते हो वो आप अगर अपनाओगे तो ज्यादा बड़े बनेंगे। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई मीन यू हैव वर्कड विद माजिदी आल्सो। जी, माजिदी, व्हाट, आई मीन इतने सारे डायरेक्टर्स, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, एंड आई ऑलवेज एडमायर योर ऑब्जर्वेशन, जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। How did you find, what was the difference you found in majority of the directors and Majid in particular, Majid? सो माजिद सर के साथ मैंने काम किया था जब मैं अपनी स्त्री शूट करने से 6 महीने पहले मैं उनके साथ था। क्यों, उन्होंने आबा शॉर्ट फिल्म देखी थी एंड उन्होंने बोला था कि असिस्ट करोगे करके। तो मैं तो पागल हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली इंटरनेशनल फिल्म माजिद मजीदी की देखी थी, बारान जिसका नाम था। तो जब उन्होंने बोला तो मैं आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट मैं नर्वस था क्योंकि उनकी लैंग्वेज मुझे नहीं पता थी। वो ईरान पर्शियन में बात करते थे और देयर वाज ऑलवेज अ ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करके हमको बताता था। बट मैंने सोचा कि ये एक चैलेंज है, हो जाएगा, लोग तो करते ही हैं, क्यों नहीं। और वो इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, मतलब गुड बैड इसमें ही पूरा भाव समझाते थे। गुड गुड
इसमें आपको समझना होता था अच्छा है या बुरा है, वैसा होता था। तो बट जो एक मैंने बहुत चीजें जो 8 साल में जो सीखी थी, डायरेक्टर्स जिस तरीके से अप्रोच करते हैं सीन को, जिस तरीके से अप्रोच करते हैं एक्टर्स से बात करने की, वो बहुत चीजें अनलर्न करनी पड़ी आफ्टर उनके साथ काम करने के बाद। क्योंकि वो एक्टर्स को जिस तरीके से ब्रीफ करते थे, वो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको पूछा कि आप एक्टर कैसे सिलेक्ट करते हो? एक्टर अच्छा होना चाहिए। कहते हैं उन्होंने बोला कि मुझे फेस 80% मिलना चाहिए, 20% में एक्टिंग होनी चाहिए। या बहुत ज्यादा डायलॉग का है तो 30% एक्टिंग होनी चाहिए, 70% फेस होना चाहिए। ये उनका अप्रोच है टुवर्ड्स कास्टिंग कि आपने जैसा सोचा आप वैसे कैरेक्टर को उनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म में उन्होंने न्यू कमर्स को चांस दिया। न्यू कमर्स एज इन जिनको पता भी नहीं है एक्टिंग का, वो गांव गए और वहां से बोला कि इसका चेहरा बहुत अच्छा है, इसको ले लेते हैं। इवन इन माजिद इस बियॉन्ड द क्लाउड में हम लोग रेकी कर रहे थे। रेकी रेकी करते करते वो हम लोग जा रहे हैं और एक बच्ची खेल रही है छोटा सा उधर, बच्चा खेल रहा है छोटा सा। माजिद मुझे इसको देखने लगे 2 मिनट, हम लोग आगे सर आगे you have to go up। तो बोलते नो 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 दैट किड। तो मैंने बोला क्या, आस्क हिम कि वो करेगा कि नहीं। एंड आई वाज लाइक सर उसको कुछ पता नहीं, कैसा नहीं पता, बट मैं समझ गया कि इनको दिख रहा है उसमें कुछ। मैं गया, बात किया, पूरा उसको कास्टिंग वालों को बोला। कास्टिंग वाले बोल रहे हैं हमारे उससे कैसे करवाओगे एक्टिंग, उसको कुछ आता नहीं है, उसको लैंग्वेज नहीं पता है, वो मराठी बोलती है बच्ची वैसी है एकदम उस तरीके से। मैंने कहा अभी करेंगे, मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म वैसे ही बनाई है, हो जाएगा। एंड देन दैट्स हाउ आई अप्रोच एक्टर्स। एंड जिस तरीके से ब्रीफ होता है, ब्रीफ भी उनका अलग होता था। बहुत चीजें नई सीखने को मिली थी जो मैं उनके साथ काम करता। So, Amar sir, let me take last 2-3 questions. Mitul sir, Yeah. if you don't mind. Yeah. हाँ. So quickly, we'll take 2 or 3 maximum questions. So one बिल्कुल. question is from Kushal Patel from USA. वो पूछ रहे हैं कि सर क्या स्त्री का सीक्वल आएगा, जैसा कि हमने क्लाइमेक्स जो देखा है लास्ट में एंडिंग, तो क्या प्लान आउट कर रहे हैं आप? ये कुशल पटेल यूएसए से पूछ रहे हैं। जी जी कुशल जी, हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि इतना डिमांड है, तो हम लोग करेक्ट स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी, की करेक्ट स्क्रिप्ट बननी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने छोड़ी थी कुछ भी कहानी, क्योंकि पैसे बनाने के लिए नहीं करनी है हमको करेक्ट फिल्म, करेक्ट स्क्रिप्ट ऑन पेपर। जिस तरीके से स्त्री थी पेपर पे, उस लेवल पे लेके आएंगे, और जिस दिन वो पेपर पे उस लेवल पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन सर कैस्पियन का है, ओंटारियो कनाडा से। हाउ विल द पोस्ट कोविड वर्ल्ड रिसीव फिल्म्स गोइंग फॉरवर्ड? डू यू थिंक डायरेक्ट टू ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट टू डिस्क विल बी द वे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एक फिल्म का जो चार्म है ना वो जाएगा नहीं। हम लोग जितनी भी फिल्म्स अपने टीवी सेट के सामने बैठ के देखें, हम अच्छे फिल्म्स भी देख रहे हैं, हमको बहुत नया सिनेमा देखने को मिल रहा है घर में बैठ के इसी बहाने। बट जिस दिन जब भी कोविड के वैक्सीन आएगा, जिस तरीके से हम थिएटर्स में वापस जाना चाहेंगे, थिएटर कभी खत्म नहीं होगा। थिएटर व्यूइंग एक कम्युनिटी व्यूइंग है, एक त्योहार होता है, एक हम लोग के लिए फेस्टिवल जैसा होता है कि आप दिन भर काम करके आए हो, फ्राइडे का वेट करते हो कि ये फिल्म मुझे थिएटर में देखनी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ आप जाके वहाँ एंजॉय करना चाहते हो। घर के सामने बैठ के आप फिल्म का वो एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो जो थिएटर में मिलता है हमको। और मुझे लगता है शुरू में थोड़ा डरेंगे लोग जाने में, बट इवेंचुअली थिएटर के लिए फिल्म्स ही बनेंगी, कुछ फिल्म्स ऑब्वियसली। लेकिन जो अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी अब एक्टर्स सामने आएंगे, क्योंकि ओटीटी का भी एक बड़ा मीडियम उनको पता चला है, इससे भी लोग फिल्म्स देखना चाह रहे हैं। बट जो थिएटर का अपना जो मजा है, बड़ी सिनेमा में अंधेरे रूम में बैठ के ताली बजाना, पॉपकॉर्न खाना, वो आपको घर पे नहीं। बिल्कुल। सो सर मेरा एक ही पर्सनल क्वेश्चन है मिट्टू सर और अमर सर, आप दोनों से, कि सर हम लोग हमेशा लाइफ में ये देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज को पाना हो, राइट, और हम पूरी कोशिश भी करते हैं और वो कई बार हमें वो चीज मिल भी जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी में था तो हमें मिल गया, राइट। बट समटाइम ये होता है कि वो चीज हमें नहीं मिलती पूरी कोशिश करने के बाद भी, तो हम बोलते हैं कि यार ये हमारा बैड लक था, शायद वो किस्मत में नहीं थे, नहीं मिला। तो इसके ऊपर आप दोनों के क्या व्यूज है, डेस्टिनी और ये बैड लक के ऊपर? नहीं, मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं ये चाहता था कि मैं फिल्म मेकर बनूं। मुझे अच्छी लगती थी फिल्म बनाना, मैं चाहता एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, वो मुझे मिला नहीं, तो मैं फिल्म बना रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये था, ये मेरा सेकंड वो था कि इसमें मैं दिल से आता था। उसमें मुझे एयरफोर्स में एक मुझे चार्म दिखता था कि क्या है, मतलब मैं प्लेन उड़ाऊंगा, वो उड़ाऊंगा,
इसका एक अलग था। तो हर चीज, हर इंसान को अगर जो आपको लग रहा है कि हमको सब कुछ मिल गया, ऐसा है नहीं। हमको भी बहुत चीजें हैं जो नहीं मिली हैं, हमको भी ऐसी है, हमको आपको लगता है कि आपको मिल गई है। एक बोलते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, विच इज मतलब जो इतना सच है कि आप पूछ नहीं सकते। मुझे लगता है एक्टर्स की लाइफ कितनी अच्छी है यार। एक्टर्स मतलब एक्टिंग करो और मस्त पैसा कमाओ और कुछ करना नहीं है। हम लोग की तरह मेंटल, हम लोग रात भर बैठ के लिखते हैं, बातें करते हैं, फिल्म बनाते हैं, टेंशन होता है, वो आते हैं, तैयार होते हैं, कर लेते हैं। तो हर इंसान को अपना सामने वाला काम अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ मिल गया है। हमको बहुत कुछ और चाहिए था, नहीं मिला, और कुछ बहुत चाहिए जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे बढ़ना चाहिए। मिटुल सर, आपके क्या व्यूज रहे हैं इसके ऊपर? देखो, टिल द टाइम जब आप इंजॉय कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, तब तक तब तक आपके लिए अच्छा है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता कि आप जो प्लान करते हो या आप जो करना चाहते हो हमेशा उसका वही रिजल्ट मिलता है। तो आई थिंक लाइफ इज समथिंग विच, और इस समय आपको रियलाइजेशन, एटलीस्ट मेरे लिए तो पर्सनली ये रियलाइजेशन है कि आई मीन देयर सो मच टू डू। एक पॉजिटिविटी भी मिलती है कि इन टर्म्स ऑफ जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो इतने सालों बाद, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि यू हैव टू स्लो डाउन। आई मीन हमेशा आप अगर सपोज इंट्रोस्पेक्ट ही करते रहोगे और आप चाहते ही रहोगे या ग्रीड ही रहेगा, तो उसका कोई एंड नहीं है। when would you start living your life? So I think it's perfectly fine that वो एक ह्यूमन एस्पिरेशन चलता रहेगा। आई मीन लाइफ इज समथिंग, अगर आप देखो तो बहुत इजी है इन टर्म्स ऑफ when you stop thinking about it, and life can be difficult when you complicate your thinking. Definitely. So, sir, before leaving, Amar sir and Mitul sir, viewers के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स है, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, एंड बहुत लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम इस इंडस्ट्री सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या उनको गाइड करेंगे? बिकॉज हमने सर ये देखा कि अगर मैं बहुत स्मॉल टाउन्स की भी बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, जैसे कि वो मेरठ से हैं, मनोज वाजपेयी सर बैतिया बिहार से, तो बहुत छोटे छोटे टाउन्स के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, राइट? तो वो टैलेंट है जो हमें अनसंग हीरोज भी बोल सकते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलते हैं कि यार यहाँ पर भी टैलेंट है। तो उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि वो अपना टैलेंट या इंडस्ट्री के अंदर अगर वो आना चाहें, वो कैसे आ सकते हैं? बिकॉज आई नो हर एक फील्ड के अंदर स्ट्रगल है, जैसा स्ट्रगल नहीं कहेंगे उसको, मतलब हर एक फील्ड के अंदर अगर हमें जाने तो मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो क्या गाइड करेंगे आप उनको इस इंडस्ट्री में आने के लिए एज अ करियर? हाँ, मैं यही बोलूंगा कि देखिए, टैलेंट है और मैं उधर हूँ, और आसपास के लोगों ने बोल दिया टैलेंट है आप में और आप बन सकते हो, ये हो सकता है, उसको अपने सर पे मत उठाओ। पहली बात, आप उस टैलेंट को पॉलिश करते रहो जब तक आपको इंडस्ट्री बुलाने लगे। पहली चीज मैं ये बोलूंगा, आपको अपने आप, हमको आपकी ही जरूरत है, हमको एक्टर्स की ही जरूरत है, हमको अच्छे डायरेक्टर्स की ही जरूरत है, और वो वहीं से आएंगे जो उन्होंने दुनिया देखी होगी, सिर्फ ये जान के कि हाँ मेरे आसपास वाले लोग मुझे बोल रहे हैं कि यू आर टैलेंटेड। और टैलेंटेड वर्ड एक जो होता है कि वो बहुत ही मिसयूज किया जाता है, मुझे लगता है कि सिर्फ टैलेंटेड बोलना। टैलेंट जो होता है वो निखरता रहता है। सिर्फ एक बार टैलेंटेड है तो उससे ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर के लिए टैलेंटेड रहोगे इस फील्ड में। आपको अपने आप को रीडिस्कवर करना होता है, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल। आप अपने आप को काम करते रहो जब तक हम आपको देखना है। दूसरी चीज, किसी भी चीज की जल्दीबाजी मत करें। मुझे 9 साल लगे तब जाके मुझे पहली फिल्म बनाने का मौका मिला, और मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता हूँ, बिल्कुल। मतलब आप मुझे पूछोगे 1% कोई बोलेगा 5 साल पहले बना लेते यार, 1 साल पहले, मैं बोलता हूँ 1 दिन भी पहले नहीं बनाना चाहता। जब बनी है, करेक्ट बनी है, मैंने उसकी दुनिया देख ली। तो आप वो जो एक जल्दीबाजी का जो होता है कि मुझे, वो आप अपने दिमाग में मत रखो। इंडस्ट्री में या बाहर के लोग, इससे अच्छा काम मुझे आता है, इससे अच्छा डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, इससे अच्छा, ये नेगेटिविटी में मत फंसो। ये नेगेटिविटी ऐसी है कि आपको सिर्फ आपका ईगो बूस्ट देती है आपको, और कुछ नहीं देती। आप अपने लिए टैलेंटेड होते हैं, दुनिया के लिए टैलेंटेड नहीं। एंड जो भी काम मिले इंडस्ट्री में आने के लिए, उसको ईमानदारी से करो। कि अगर आपको लगता है कि मैं अपने छोटे से सिटी में थिएटर करूं, वहां पे बैक स्टेज करूं, मुझे एक्टिंग का मौका नहीं भी मिल रहा है,
तो भी मैं बेस्ट करूँ, तो वो भी करूँगा। वहीं से आपको कोई एक आदमी बोलेगा बेटा ये इसको मैं जानता हूँ बॉम्बे में, इसके पास चला जा, या इसके पास चला जा, उसको फोन करता हूँ। ये पूरा जो है, मुझे पहली फिल्म मिली थी, किसी को नहीं जानता था, मैं ऐसे मिल गई थी। लेकिन दूसरी फिल्म मुझे मिली, उन्हीं के क्रू में, पहली फिल्म के क्रू वाले ने ही मुझे बोला कि इस फिल्म में तू काम कर, उसमें वो लोग लड़के थे, उस फिल्म के 5 लोगों ने अलग अलग रिकमेंड किया। तो ये इंडस्ट्री ऐसे ही होती है, रिकमेंड से ही होती है, क्योंकि आप कहाँ हो किसी को पता नहीं चलता, आपको खोजना पड़ेगा, और वो खोजने के लिए आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा, बिना काम के नहीं होगा जी। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि ईमानदारी से करते रहें, जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें, और अगर आपकी अंदर वो चाह होगी तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ फेक चाह नहीं होनी चाहिए, एक ईमानदारी वाली चाह होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। So, Mitul sir, आप क्या कहना चाहेंगे so that we can conclude this session after that? अब तो कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, because I completely agree with what Amar and I mean you have, मुझे लगता है कि हर चीज में जो भी आप करो, किसी भी फील्ड में, you have to be honest. आपके intentions अच्छे होना चाहिए, intent अच्छा होना चाहिए, and you have to be honest. और कुछ भी आप कर लो without working hard and pursuing following your passion, कुछ नहीं हो। तो इसलिए मतलब be honest to yourself, be honest to be on, किसी और से honest हो ना हो, but अगर आप अपने अंदर झांक कर देखो, and if you are honest to yourself, you will be honest to others. And intentions जो होते हैं, मतलब your intent has to be pure. आप जो भी करो, and you have to still stick by your intent. So it was really a interesting session. Being a common person, even हम भी जब movies देखते थे तो मेरे को हमेशा ये लगता था कि यार एक एक्टर की जिंदगी कैसी होती है, डायरेक्टर की या प्रोड्यूसर की, तो आज वो सब कुछ समझने को मिला कि you people are really down to earth people, because हम कई बार सर देखते हैं टीवी में और मूवीज वगैरह देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये एक्टर होगा, इतना सक्सेसफुल होगा, इसके अंदर ईगो होगी, या वो आ जाता है कई बार लोगों के अंदर बिकॉज वो सक्सेस आने के बाद। बट टू बी फ्रैंक, आज आप लोगों से बात करके, अभिषेक सर से, आपसे और मितुल सर से लगा कि यार यू पीपल आर रियली डाउन टू अर्थ, और आपकी जो स्टोरीज हैं रियली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं एक यूथ के लिए, और आई मीन रियली मोटिवेट करेगी हमें सबको। So thank you very much to Amar sir, Mitul sir and Abhishek sir को जाना पड़ा कि आपने अपना टाइम दिया, and hope to meet with you in person in future, अगर कभी मौका मिलेगा तो for sure. And जाते जाते सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, what next? अभी अगला क्या प्लान आउट है जाने से पहले? अगला चल रहे हैं दो सब्जेक्ट्स पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, उनमें से जो स्क्रिप्ट पहले अच्छी बनेगी वही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा सबके लिए होती है, मेरे लिए भी वही है कि पेपर पे क्या पहला अच्छा आएगा वो मैं बनाना चाहूँगा। तो अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि क्या पहला बनेगा, बस ट्राई कर रहे हैं। कोविड का टाइम मिला है घर पे बैठ के लिखने का, तो थोड़ा टफ है कि आपको पता नहीं है कि आप कब बनाओगे, क्या होगा, बट वी आर ट्राइंग, जो अपना जितना कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ, कि जो मौका मिला है उसको यूज करो। एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसमें बुलाने के लिए, एंड सबके सवाल में नहीं जवाब दे पाया, टाइम नहीं था, तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आप सबका रिप्लाई करूंगा। श्योर सर। मेरा भी क्वेश्चन था एक कि शॉर्ट फिल्म बनाए क्या? हाँ, एक और शॉर्ट फिल्म बनाए क्या? बिल्कुल, अभी बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं। चलो घूमने को तो मिलेगा। आई मीन अभिषेक वाला थोड़ा सा वो हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी वो था, बिकॉज यू नो इमोशंस एंड वी रियली फेल्ट। अदरवाइज शायद मैं बहुत कुछ किस्से इनके सुनाता अमर के, एंड द टाइम स्पेंट विद हिम, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। तो आई मीन वो रह गया, बिकॉज वही मैंने प्लान किया था कि कोई बिल्कुल सीरियस डिस्कशन नहीं होगा, बट इनके किस्से सुनाऊंगा मैं। जाने से पहले अगर कोई एक किस्सा सुनाना चाहिए आप सर, विद इन अ मिनट और टू। सर एक किस्सा हुआ कि माजिदी के साथ जब ये काम कर रहे थे, तो उस समय ही आबा बर्लिनाल के लिए, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई। तो राजकुमार और मैं दोनों, हमारी एक सीनियर एडिटर फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा, तो उनसे मिलने गए कि यू नो किसी तरीके से, आई मीन वो हमें मतलब माइलेज कह लीजिए या फिल्म के बारे में लोग बताएं आबा के लिए।
तो अच्छा, वो दोस्त मेरी थी, बहुत क्लोज वो थी, तो राज भी जानते थे। तो हम ब्रेकफास्ट में मिलने गए, और राज के साथ क्या है कि वो बहुत कम बोलते हैं, और जनरली मेरे साथ ये रहता है कि ठीक है, आई वुड कम्युनिकेट। और वो ब्रेकफास्ट में जब हम गए तो उन्होंने बोला कि हाँ ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट पे मिले तो राज वॉज द वन हु स्टार्टेड स्पीकिंग। तो जब ये माजिदी के साथ फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक बड़ी आई मीन 2 एक्ट्रेसेस के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो एक एक्ट्रेस को जो वो था, तो दूसरी एक्ट्रेस ने और ये अमर ने ही हमको बताया, और गॉसिप चल रही थी। तो वो जो गॉसिप थी कि वो माजिदी का जो जो प्रोड्यूसर था और वो सब थे, कास्टिंग चल रही थी, तो एक बड़ी एक्ट्रेस ने फोन किया कि दूसरी एक्ट्रेस के लिए इसको तो कपड़े धोने भी नहीं आते, और वो धोबन का रोल था। तो ये जब स्टोरी वो करी तो आई मीन उस समय जो ये पब्लिकेशन था उसमें बहुत आई मीन सब कुछ मीडिया नेट के थ्रू कवर होता था, और ऐसा कोई भी वो नहीं था। तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या हुआ कि सवेरे सवेरे मेरी फ्लाइट थी, तो अमर का फोन आया। तो अमर को लगा कि शायद ये जो स्टोरी है वो मैंने बताई है, और वो सब जगह वो था कि एक्ट्रेसेस का झगड़ा था, कि 2 एक्ट्रेसेस का नाम लेके, और नीचे लिखा हुआ था कि अमर कौशिक टू एसएस माजिदी, एंड उसके बाद आबा के बारे में उन्होंने ऑब्लाइज करने के लिए लिखा हुआ था। तो अमर का फोन आया एयरपोर्ट पे, मुझे समझ में नहीं आया कि मॉर्निंग की फ्लाइट की है, क्या हुआ। अमर कह रहा है सर आपने ये क्या कर दिया, बिकॉज इट वाज एक्सपेक्टेड कि मैं शायद बोलूं और राज ना बोले। अब मैं ये भी नहीं उसको बोल सकता था कि यार ये कहानी जो थी, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है यार ये तो इट्स बिकम अ मेजर कंट्रोवर्सी बिकॉज आई एम डूइंग द फिल्म, एंड ये गॉसिप मेरे नाम पे ही आएगा बिकॉज मेरा न्यूज लगा हुआ है। तो बहुत टाइम लगा उसको बताने के लिए। तो ये किस्सा और इंटरेस्टिंग हो सकता था कि अगर मैं लोगों के नाम लेता, एक्ट्रेसेस के, बट वहां पे आई डोंट वांट टू डाइवर्ज दोज नेम्स, कि वापस वो बोलेगा कि किसी ने अगर देखा कि आगे जाके हो सकता है उन एक्ट्रेसेस के साथ काम करे। तो बहुत टाइम लगा अमर को बताने के लिए, पूरी स्टोरी बताने के लिए, कि कैसे ये दिस केम इन द न्यूज। यू रिमेंबर दिस इंसिडेंट अमर? बेसिकली मैंने गॉसिप दिया था, जो गॉसिप छप गया। तो चलो यार अमर, हाँ सर। इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, एंड जिस तरीके से तुम फिल्में बना रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और बनाते रहो अच्छी फिल्में, और ऑल द बेस्ट टू यू, एंड कीप लिविंग योर ड्रीम। बहुत मेहनत। थैंक यू। Okay, sir. और So Thank you very much. चलो, Thank you. Thank you very much, Amar Kaushik sir and Mitul sir and Abhishek sir. So viewers, if you have any question, you can directly write to Amar Kaushik sir on Instagram, and once he will get the time, he will give an answer to you. So thank you very much, sir, and looking forward. Best wishes. Okay, sir. Thank you. Bye. 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 So viewers, we are going to start our online robotic course soon. So our team members will get back to you, and from tomorrow onward, we are going to start our demo classes for the online robotic course. So please enroll for the online robotic course with us, and we'll give you the demonstration classes. And we have already spread the message on WhatsApp as well as on Facebook. So if you are interested, you can be the part of our online robotic course, and our experts will teach you about the robotics, and will also provide all the assistance related to robotics in our upcoming course. In addition to that, Smart Circuits Innovation Private Limited has also started around 8 courses related to innovation. So you can visit our website www.smartckts.com, and you can check out all the latest online courses. And if you are interested, you can enroll in those different courses with us, and you can send us an email or talk with our team member at any time, or you can comment us on a Smart Circuits Innovation page. Thank you very much. And those who have already filled the form, so we'll give the timing, and from tomorrow onward we are going to start the demo classes for the robotics. Thank you very much. Have a nice day.